यस सर। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम सर, प्रोबेबली नॉट। प्रोबेबली नॉट। ओके। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यस सर। तो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड? So modern farming method means that it is a type of farming in which many different type of kind of things are used to get more yield in comparing of the traditional farming. In this type of farming, HIV seeds, which is high yielding Wait, wait, variety of wait, wait. seeds. Is this HIV or HYV? What you are Sorry, saying? sir, HY. HYV. Yeah. HYV seeds, that means high yielding variety of seeds are used, by which the yield is to produce more yield as compared to the traditional farming methods. And in this type of farming, other tools, other mechanics, and other professional tools are used. For example, the new kind of threshers and all the machineries that are made for this modern type of farming. ओके, गुड अटेम्प्ट दीपक। ठीक है, बट आपको भी और पढ़ना है। ठीक है, यू विल प्रिपेयर इट मोर। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट वन, मीनाक्षी। इज शी हियर? मोक्षिका Yes, sir. क्लास में है? मोक्षिका? Yes, sir. यस। मोक्षिका, टेल मी अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय yield. What you understand by Yield. What do you understand by yield? yield? YIELD. Haha, sir. Sir, the crop produced in a given amount in a given area of land is known as yield. Okay. How to increase? Means how to cultivate more crops? What are the methods through which we can cultivate more crops? So, by modern farming method includes many ways by which we can increase our yield, like using HYV seeds, using fertilizers, and multiple cropping method also increase yield. What is multiple cropping? So, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping method. Okay. So, And what are the two main crops of village Palampur? two main crops of village Palampur are wheat, bajra, and the third main crop is potato. Okay. So, which is the major crop of Kharif season in Palampur? Kharif season, Kharif season crop. Two crops are major in Kharif season in Palampur. What are they? jowar, bajra, and paddy. Jowar Bajra probably. Okay, Jowar Bajra is the main crop. ठीक है. Great. Good attempt, Mokshika. Now Thank next, Arnav Singh. Arnav Yes, Singh, sir. Good evening, sir. good evening. Explain factor of production. Okay, sir. Sir, there are four factors of production which determine how a production would be. First factor is land. It includes the place where the productive activity is to be done. It also includes the natural resources like water, forest, etc. The second factor of production is labor. Labor refers to the people who are going to produce something. Like we are saying that dihadi mazdoor. So, sir, they are the laborers. Sir, labor are of two types. Sir, they are categorized in two categories. Sir, skilled labor and unskilled labor. Sir, skilled labor are very highly educated and they are given to handle the very important tasks. And unskilled labor, they are usually mainly uneducated and they do manual labor. Sir, third factor of production is Okay, physical capital. Arnav, what is the main activity of village Palampur? Sir, farming. Okay, good. Next, Okay, sir. Nandini Mandral. Nandini Mandral, am I audible to you?
Nandini Mandral, am I audible to you? मेरी आवाज सभी को आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are clearly audible. Okay. Nandini Mandral. Okay. Mohammed Sameer. Mohammed Sameer, am I audible to you? Please unmute yourself. मोहम्मद समीर, कोशिश करो, अनम्यूट कर तो रहे हो, फिर म्यूट कर दे रहे हो। मोहम्मद समीर, मोहम्मद समीर नंदिनी मंडल। ओके। गर्व गुप्ता, गर्व गुप्ता, Yes, sir. आपने विलेज पालमपुर पढ़ा है अच्छे से? Yes, sir. केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताइए। व्हाट आर द pros and Excuse cons me, of chemical fertilizers? Mohammed Sameer is writing something in the comment that his mic is not working. ओके, कोई बात नहीं। Sir, can you repeat the question? Chemical fertilizers, what are the advantage and disadvantage of chemical fertilizers which we use today? Sir, chemical fertilizers advantages are, sir, they increase the crop they lose the crop fertility, Okay, but they but they but they grow the crop easily and grow in less time. okay. And sir, but they damage the crop. Anything Yeah. else? लोप Sir, they मुंद्रा। also ओके गर्व, आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आपने अच्छा ट्राई किया, बट और अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है गर्व? okay, sir. ओके। लोक मुद्रा शर्मा, लोक Sir- मुद्रा शर्मा। Sir Krishna. Yes, Yes, sir. कृष्णा। ओके, तो कृष्णा, यू कंटिन्यू विद केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या पढ़ाया था मैंने केमिकल फर्टिलाइजर्स में, बताइए। सर आपने पढ़ाया था केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो हाई यील्ड देते हैं हमारे क्रॉप को, पर जो वो होता है क्या कहते हैं, डैमेज कर देते हैं क्रॉप को। फर्टिलिटी जो होती है लैंड की वो डिक्रीज कर देते हैं, और जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी पल्यूट हो जाता है। सर एग्जांपल लाइक पंजाब। हाईएस्ट कंजम्पशन जो है अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स की देखी जाए तो वो इन द स्टेट ऑफ हरियाणा है, करेक्ट? सर पंजाब, हरियाणा एंड वन अदर। चलो ठीक है, पंजाब हरियाणा। और ये विलेज पालमपुर में 1/3 ऑफ द फैमिलीज आर दलित्स। दलित। करेक्ट Yes, sir. स्टेटमेंट है। यस सर, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ द फैमिलीज आर दलित, करेक्ट है? यस सर। नहीं, लोपमुद्रा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। कृष्णा नाम है, सॉरी। यस ठीक सर। है, तो इट इज नॉट 1/3 ऑफ द फैमिलीज, इट इज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। आपने ये कहा भी है। यस सर। Population सब family मैं तो कंफ्यूज हो गया सर। आपने पहले पढ़ाया था एक में, उसमें आपने 150 फैमिलीज का था, और ये भी बोला था 1/3 ऑफ द फैमिलीज। इसमें मैं 1/3 कंफ्यूज हो ऑफ गया। द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है? एक बार फिर से आप देखेंगे इसको। यस सर। Is that clear? यस चलो सर। ठीक, गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट, श्रुति चंद्रा। श्रुति चंद्रा, am I audible to you? Okay. Yes, sir. श्रुति, आप बताओ, who is the father of green revolution in India? Sir, according to India, the father of green revolution is M.S. Swaminathan, and according to world is Norman Borlaug. Norman Borlaug. Spell Okay. Yes, Norman Borlaug. Okay. yes, sir. उसको नोबेल प्राइज मिला था 1917 में. Yes. अब इसमें ये बताइए, नॉन फार्मिंग मेथड्स, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कितने परसेंटेज लोग इन्वॉल्व हैं विलेज पालमपुर में? Sir, नॉन फार्मिंग में 25%. 25% है, वेरी गुड। और मार्केट में सरप्लस कौन जो है कि बेचता है? स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, कौन है?
So small farmers. नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। Medium farmer, sorry sir, medium farmer. नहीं, दिव्या माथुर, am I audible to you? दिव्या माथुर, दिव्या, can you hear me? ज्योति कपूर, ज्योति कपूर, am I audible to you? बच्चे इतना डर क्यों रहे हैं आंसर देने में, अनम्यूट करने में? आंसर दो, या तो सही होगा या तो गलत होगा। कुछ इसमें ऐसा कुछ थोड़ी है कि नहीं आया तो कुछ बहुत बड़ी चीज है। यस किसने बोला है ये? यस सर। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। ज्योति कपूर। अच्छा, ज्योति कपूर। अच्छा, आपका ओरिजिनल नेम क्या है? कार्तिक। कार्तिक। आप नेक्स्ट टाइम कार्तिक लिख के जो है कि अपना नाम लिखेंगे, ठीक है? चलिए आप क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो सरप्लस है उसको मार्केट में कौन सेल करता है? स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, या नन ऑफ दीज? कौन सा होगा सही आंसर? सर नन ऑफ दीज। नहीं, इसका आंसर होगा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मैंने लिखवाया है सेल ऑफ सरप्लस। ओके, सेल ऑफ सरप्लस कौन करता है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। एक बार फिर से आप लोग जो है नोट्स जो बनवाया है मैंने, उसको गो थ्रू करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन नारायण। यस सर। नारायण, आप बताइए कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग इन्वॉल्व है? 10%, 20%, लेस देन 50 पीपल, मोर देन 50 पीपल? सर मोर देन 50 पीपल। गलत हो गया। सर लेस देन 50 पीपल। इट्स लेस देन 50 पीपल। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अच्छे से और पढ़ के आइए। जिसका जो आंसर नहीं दे पाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है, उन्होंने बस सिर्फ आज पढ़ाई नहीं की है, बस इसका यही मतलब निकलता है। और जो बच्चे आंसर देने में डर रहे हैं, माइक को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई ही नहीं है। नेगेटिव एक थोड़ा ये इसका क्या जाता है, फीडबैक जाता है। आप आवाज मेरी सुन रहे हैं तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए? फ्रंट में आके यस और नो तो बोलना चाहिए। आंसर आए ना आए वो बात की बात है, आएगा ही। किसी चीज को एक बार पढ़ो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आएगा क्यों नहीं? कम से कम ट्राई तो करो, अटेम्प्ट तो करो। जो अटेम्प्ट करता है वही लर्न कर पाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट टाइम से सभी अटेम्प्ट करेंगे। Yes, sir. यस सर। आए ना आए वो बात की बात है। अगर नहीं आता है सपोज, तो मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक है? मैंने अपने क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीखी हैं। जब सपोज मेरे टीचर मुझसे पूछते थे और इन केस मुझे नहीं आता था, जो मुझसे वो पूछते थे और जब उसका मुझे आंसर पता लगता था, तो मैं वो आंसर कभी भूलता ही नहीं था। वो हमेशा मेरे याद में जो है, मेरे दिमाग में बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खड़ा होकर मैं आंसर नहीं दे पाया, और वो हमेशा मेरे दिमाग में फीड हो जाता था। मैं बाकी आंसर भूल जाता था, बट वो आंसर नहीं भूलता था जो मेरे टीचर मुझे खड़ा करके पूछते थे और मैंने नहीं जवाब दिया था। ठीक है, वो हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। अगर इस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो जो भी आंसर्स हैं जो नहीं आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ये सब तरीके हैं पढ़ने के। सर मेरा एक डाउट था सर, ये इसी चैप्टर से। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ मेरी बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस नेक्स्ट सर। टाइम से सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बताइए बताइए सर, क्या जो आपने सर वो पढ़ाया था कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है 25% लोग इन्वॉल्व थे उसमें पालमपुर के, तो उसके अंदर आपने 25? पॉइंट बताया था। हाँ, नहीं सर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में 25% ही लोग तो थे। Yes, हाँ, sir. 25 ही है, ठीक है, बोलिए। हाँ सर, तो उसके अंदर एक पॉइंट था ट्रांसपोर्ट वाला। सर वो ट्रांसपोर्ट वाला मैंने जब रिवाइज किया ना, तो मैं उसके पॉइंट्स भूल गया जो आपने समझाए थे। मतलब ऐसे नोट्स में मुझे याद है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मतलब मैं भूल गया आपने जो याद कराया था। आप एक बार उसे समझा दो। मैंने उसमें यही बताया था ट्रांसपोर्ट में कि वहाँ पे रिक्शा वाला, टोंगा फेरी वाला,
ठीक है, जीप वगैरह। हम लोगों ने स्टोरी विलेज पालमपुर जब पढ़ा तो उसमें देखा दोनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न। ओके, व्हीकुलर जो है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो भी क्या है, अवेलेबल है। ऑल वेदर रोड है वहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है कि एक न्यू वे ऑफ अर्निंग मनी था। ठीक है, अब क्या होता था वहां से विलेज पालमपुर से रायगंज और शाहपुर, ओके, क्या होते थे, गुड्स जाया करते थे। तो जब गुड्स वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ही आप क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह सामान बेचेंगे, ले जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या है, लोगों का भी जो है आना जाना होता है। तो लोगों के आने जाने में भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट है। तो जब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट में भी जो है लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ये बनता चला जा रहा है। और इसमें जो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था वो किशोरा का था, इजंट इट? तो किशोरा के पास पहले जो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, वो फार्म लेबरर था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने एक चीप लोन लिया बैंक से। चीप लोन लेके एक बफेलो खरीदा। बफेलो से अब उसने क्या किया, मिल्क के जरिए थोड़ी अर्निंग उसकी हो गई, मिल्क बेचता था वो। और उसके बाद उस बफेलो का यूज करता था ट्रांसपोर्टेशन में। नियर बाई गंगा के जाता था, आसपास जो गंगा बहती है वहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे वहाँ जाता था, वहाँ से क्लेई मटेरियल वगैरह ले आता था जो कि आपके किसको रिक्वायर होता है, पॉटर्स को। तो बस इतना ही एक कहानी के तौर पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ट्रांसपोर्ट के हेल्प से किशोरा की अर्निंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मतलब इस चैप्टर में एक स्टोरी की हेल्प से हमें पूरा वो बताया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड और ये methods। नहीं, इस स्टोरी के हेल्प से आपको प्रोडक्शन समझाने की कोशिश की गई है। प्रोडक्शन में आपको सबसे पहले लैंड समझाने की कोशिश की गई है, फिर उसके बाद लेबर, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कैपिटल समझाने की कोशिश की गई है। अब चौथा जो है ह्यूमन एंड एंटरप्राइज, वो आपको चैप्टर 2 में समझाया जाएगा सेपरेटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, समझ में आया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही पढ़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ विलेज। यस सर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर मतलब Yes, ये इमेजिनरी विलेज हमें प्रोडक्शन समझाने के लिए बनाई है। हाँ, वेरी गुड, यही है, आपको प्रोडक्शन समझाने के लिए बताई गई है। अदरवाइज ये बुक तो देखो, बुक क्या है, इकोनॉमिक्स की है। विलेज पालमपुर का क्या रोल है ना, मेन क्या है, प्रोडक्शन। और इकोनॉमिक्स का ये क्या है, पार्ट है, प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन जो हमने पढ़ा था फोर्थ पॉइंट, उसमें फर्क क्या है, ह्यूमन हाँ। कैपिटल और ह्यूमन एंटरप्राइज? हाँ, बताइए उसमें क्या है, प्रॉब्लम है? सर उसमें डिफरेंस क्या, मतलब एक होती है ह्यूमन नॉलेज एंड कैपिटल। एंटरप्राइज। नॉलेज एंड एंटरप्राइज में जो है कि नॉलेज एंड एंटरप्राइज को इन्होंने कल्मिनेट करके किस में चेंज किया, ह्यूमन कैपिटल। तो नॉलेज और एंटरप्राइज, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज क्या करते हैं, पीपल यूजेस लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, एंड दे सेट अप एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एंटरप्राइज का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। समझ में आ रहा है? लैंड, लेबर और कैपिटल का रिक्वायर जो है कि अपने से वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कौन करता है, ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ रहा है? यस सर। एंटरप्राइजेस वगैरह, और उसी एंटरप्राइजेस में कौन सा वर्क एग्जीक्यूट होता है, प्रोडक्शन का वर्क एग्जीक्यूट होता है। सर लाइक सर जैसे अगर आपके पास कितना भी मनी और नॉलेज नहीं हो कि कैसे सेटअप करनी है एक एंटरप्राइज, तो फिर भी कोई फायदा नहीं। पर अगर आपके पास नॉलेज हो पर पैसे ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है, यानी दोनों चीजें चाहिए। यस, चलो ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Okay, Yes, so sir. French Revolution. I think many of you completed this chapter in your school, isn't it? सभी ने किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो आसानी होगी, आप लोग मुझे हेल्प करोगे, ठीक है? तो जब भी मैं पूछूं तो मुझे थोड़ा हेल्प कर देना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो, यस सर। Yes, sir. we will start with the first page of your book, ठीक है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, चलो अब ये बता दो रेवोल्यूशन क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले रेवोल्यूशन को समझें। व्हाट इज रेवोल्यूशन? हु विल एक्सप्लेन दिस? बगावत। हु विल एक्सप्लेन दिस? Changes. कौन एक्सप्लेन करेगा?
मोक्षिका, Sir, मोक्षिका, Yes, will you sir. try? What is No, sir. revolution? Okay, Arnav, will you try? yes sir, I'll try. Yes. सर रिवोल्यूशन मतलब एक चेंज सर विद पीरियड, जो एक चेंज आया, जैसे इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में ये एक रेबल के फॉर्म में है कि राजा था उसको हटा दिया और वहां पे एक रिपब्लिक फॉर्म किया। तो सर रिवोल्यूशन मतलब एक चेंज थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ठीक है सर मैं ट्राई करूं? अब तो दिमाग नहीं आ रहा है, बताइए दीपक। सर मैं ट्राई करूं? हाँ बताइए। सर रिवॉल्यूशन is a thing, मतलब when many people come together and come together and bring up a sudden change in a political or an field to get right, to get their rights. ओके, अब चलो सुनो। तो फ्रेंच सर रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन में सर मैं बताऊं कॉन्सेप्ट मनोज? गोयल, सत्यम गोयल अटेम्प्ट करो सर रेवोल्यूशन। मनोज, सर मनोज। सर जैसे एक नई चीज का उभरना, एक जैसे ह्यूमंस की रिवोल्यूशन हुई, वैसे एक नई चीज का उभरना। चलो ठीक है, सुनो। रिवॉल्ट, सर मैं बताऊं मनोज? मनोज बताओ। सर रिवॉल्यूशन मतलब उनके पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा और जितने भी रिवॉल्ट्स होते हैं रेवोल्यूशन में और उनके पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंज आता है और लोग अपनी डिमांड्स मांगते हैं। चलो अच्छा ट्राई किया थोड़ा बहुत सभी ने। रिवॉल्ट क्या है? विद्रोह, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लोगों ने क्या किया है? विद्रोह कर दिया है। किसके अगेंस्ट? ऑब्वियसली मोर और लेस देखा जाता है जो एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट। गवर्नमेंट, ओके, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हो जाता है जब उनके राइट्स फुलफिल नहीं होते हैं। अब राइट्स किस तरीके के? उनके जब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, Cultural. एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह के जब राइट्स उनके फुलफिल नहीं होते हैं एंड व्हेन दे फील दैट दे आर सबजुगेटेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, देन अ रिवॉल्ट कैन टेक प्लेस। ठीक है, फूड की स्कार्सिटी भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ये मैंने एक होलिस्टिक व्यू बताया, एक्सेट्रा लिख दिया है तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं रिवॉल्ट के। अब रेवोल्यूशन, दिस इज फॉर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिवॉल्ट, एंड इफ इट इज कैरिंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज अ रिवॉल्यूशन। सर लाइक 1957 का रिवॉल्यूशन था, जबकि जो 1857 की क्रांति थी सर वो जस्ट अ रिवोल्ट। इट वाज जस्ट अ रिवॉल्ट, ठीक है, और वो खत्म हो गई विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यू विल फाइंड दैट इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1789 एंड इट कैरिड ऑन, ठीक है, फॉर थ्रू 2 years, 3 years, 4 years, 5 years and so on. Yes. Particularly you will find that there was an end of this revolution in 1848 that you will understand in class 10th. Okay, अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ो and mind it that this chapter will not be asked in your 9th examination. It will be asked in your 10th as well. There is a chapter called The Rise of Nationalism in Europe where you will find the reference of French Revolution. So take it very seriously and read it, go through it thoroughly and understand the topic. Okay, so now we will come to our main content of French Revolution. So these are some basics which I told you. The main concept अगर हम देखें तो we will start with a scenario and an event which took place in Bastille. Okay, so the period is of 1789. 1789 14 जुलाई। Okay, 1789 14th जुलाई, 14 जुलाई 1789 की बात है। ओके, हुआ क्या इसमें कि जो सिटी ऑफ पेरिस था, सिटी ऑफ पेरिस, वहां पे भगदड़ मचती है। ठीक है, हुआ क्या, लोगों ने कहा कि किंग ने क्या किया है? सर ये रूमर था। लिसन पहले, किंग ने कमांड किया है ट्रुप्स को, ठीक है, ट्रुप्स को कमांड किया है कि सिटी में मूव करो। कहाँ मूव करो? सिटी में। और वहां पे एक र्यूमर फैलता है, अफवाह,
र्यूमर को कहते हैं अफवाह। वहां पे र्यूमर्स फैला कि यहाँ पे क्या करेंगे ये ट्रूप्स, दे विल ओपन अप फायर, ठीक है, दे विल ओपन अप फायर अपॉन द सिटीजन्स, लोगों के ऊपर गोली चलाई जाएगी। अब इसको सुनकर, ठीक है, इस बात को सुनकर क्या होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं, पीपल स्केयर्ड, ठीक है। So was in a state of alarm मतलब यस, किसका मतलब? was in a state of alarm at the dawn of the 14th July 1789. The city of Paris was in a state of alarm. अलार्म, it's alarm. अलार्म। ओके, इट्स Sir, अलार्म। R तो अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है कि वहां पे जो है कि ये सुनने में आता है कि किंग ने ट्रुप्स, सैनिक की कुछ टुकड़ियों को कह दिया कि सिटी में जाओ, और र्यूमर फैलता है कि वो आएंगे जब सिटी में, ठीक है, सिटी कौन सी? पेरिस में। ओके, तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ के सिटीजन है उनको गोली मार देंगे। तो क्या होता है, लगभग 7000 मेन एंड वेमेन, ये लिखते चलना सभी लोग, 7000 मेन एंड वेमेन क्या करते हैं, एक साथ गैदर होते हैं। ओके, दे गैदर सामने टाउन हॉल, फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, इन टाउन हॉल, फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल के सामने जो है कि गैदर होते हैं, और क्या बनाते हैं, पीपल्स मिलिशिया। ओके, पीपल्स मिलिशिया मतलब, मिलिशिया मतलब यहाँ पे लड़ने वाले लोग, अपना एक ग्रुप गैदर करते हैं, मिलिटेंट काइंड, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट दिस ट्रुप, इन ट्रुप से लड़ने के लिए अपना एक संगठन बनाते हैं। मतलब संगठन यहाँ पे इन द सेंस कि अपने लोग जो है कि कुछ लोग 7000 लोग एक साथ आते हैं, एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल फेस दिस ट्रुप्स एंड दे विल फाइट विद दिस ट्रुप्स। समझ में आया? सर इसमें र्यूमर क्या थी? र्यूमर ये थी कि र्यूमर जो ये थी कि troops- ये जो ट्रुप्स हैं, दे विल ओपन अप फायर अपॉन द सिटीजन, दिस वाज द र्यूमर। तो ये तो र्यूमर नहीं था ना कि जो किंग है उन्होंने कमांड किया था कि ट्रूप्स बाहर निकलेंगे। हाँ, किंग ने तो ये कहा कि सिटी में जाओ, बट र्यूमर ये फैल गया कि सिटी में आ तो रहे हैं, बट दे विल अटैक ऑन अस, इस, ठीक है, दे विल ओपन अप फायर अपॉन द सिटीजन, ये र्यूमर था। सर जैसे 1857 में क्रांति की भी एक अफवाह से ही हुई थी। चलो ठीक है, उसको अफवाह ही मानो, ठीक है, अभी हम लोग 1857 नहीं मान रहे हैं, सर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं र्यूमर है 1857 की क्रांति, बट हु नोस, ठीक है। अब उसमें कह दिया गया कि भाई इसमें जो चर्बी है वो गाय और काऊ और पिग की है, जो वो एनफील्ड बुलेट आया था जो, how could we know? Yes, sir. News आया था कार्टेज कार्टेज का, यस करेक्ट। तो चलो हम लोग अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग जो है कि जो मिलिशिया बनती है पेरिस में, ये ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं। कौन से? ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ट्रुप्स आए नहीं, अटैक हुआ नहीं। ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, किला नुमा, ठीक है, यहाँ पे किला नुमा क्या है? प्रिजन। ओके, फोर्ट्रेस प्रिजन है जिसका नाम क्या है? बेस्टाइल। ओके, राइट, ये क्या है? बेस्टाइल। अब यहाँ पे लोगों को लगा कि यहाँ पे क्या है, आर्म्स एंड एमिनिशंस हैं, हथियार पड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे हथियार क्या होंगे? सर ये जब भी आपने फोर्ट्रेस समझाया, मुझे ये वाली जगह समझ नहीं आई, एक बार दोबारा समझा दीजिए। इसमें समझना ये है कि फोर्ट्रेस मतलब किला नुमा क्या था? जेल था जिसका नाम था बेस्टाइल। लोगों को लगा कि यहाँ पे क्या है? आर्म्स एंड एमिनेशन, यहाँ पे गोले बारूद, बंदूक, हथियार होंगे। हम लोग जो ये मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट मतलब पीपल्स मिलिशिया जो है, ओके, इन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोग ईस्टर्न तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो फोर्ट्रेस प्रिजन है उस पर अटैक करेंगे, यहाँ पे हमें आर्म्स एंड एमिनेशन मिल जाएगा, जिससे कि हमें हेल्प होगा, ठीक है, मदद मिलेगी इन किंग्स के ट्रुप से लड़ने में, किंग के ट्रुप से लड़ने में। समझ में आया पॉइंट? ओके सर, तो अभी तक इस सिनेरियो में वो ट्रूप्स ने मतलब वो आए नहीं है सिटी में? नहीं, इनसे कोई फाइट हुई नहीं उस तरीके की, वो अटैक करते नहीं है, बट इन्होंने जो है कि अब यहाँ पे आपने ये केस समझा ना कि ये क्या था, वाज अ र्यूमर। यस सर, र्यूमर, ठीक है। सर उनको आर्म्स और ये मिल चुके थे ना उस फोर्ट से?
नहीं। हाँ, अब यहाँ पे जब ये जाते हैं इस तरीके कि इनको आर्म्स वगैरह उतना नहीं मिलता जितना इन्होंने सोचा था। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बेस्टाइल में एंटर करते हैं तो जो वहां के कमांडर थे उनसे फाइट होती है। सॉरी, सर ये टाउन हॉल और ये पीपल्स मिलिट्री जो है ये वाला, सर टाउन हॉल क्या है मतलब? टाउन हॉल एक जगह है। सर अब मतलब ये अभी सिटी में नहीं पहुंचे हैं, अभी टाउन में ही गैदरिंग हुई है इनकी। हाँ, टाउन हॉल एक जगह है जहाँ पे लोगों की जो है गैदरिंग होती है। और उससे आगे जो आपने पीपल्स मिलिट्री वाला पॉइंट लिखा है ये कौन सा है? पीपल्स मिलिशिया। ओके, मिलिशिया। सर मिलिशिया मतलब तो ये लोग अपने वहाँ पे एक जो मिलिशिया बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं 7,000 का, जो कि फाइट करेंगे अगेंस्ट होम ट्रुप्स। सैनिकों के लड़ने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक अपना ग्रुप बनाया मिलिशिया लड़ने के लिए, इसीलिए नाम मिलिशिया दिया है, दोज हु विल रेजिस्ट दिस ट्रुप्स। अब वो उसमें मेन और वेमेन भी थे। कितने लोग थे उस मिलिशिया में? नियरली 7,000 पीपल वर देयर। तो सर मिलिशिया कोई नाम होता है क्या स्पेसिफिकली? हाँ, नाम है जिसमें ये बताया जाता है। मिलिशिया का मतलब ये है कि कैन एनी वन ऑफ यू से एक्सप्लेन व्हाट इज मिलिशिया इज? हिंदी बताओ सर गेम भी तो है मिनी मिलिशिया। यस सर एक छोटी सी सर आर्मी। Sir, a sort of military. सॉर्ट ऑफ क्या है? मिलिटेंट्स जिसमें हो, मिलिटेंट्स टाइप के। Sir, आर्मी भी कह militants, सकते a sort of military. सर आर्मी हाँ, शॉर्ट मिलिट्री। ओके, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सर छोटी सी टुकड़ी। चलो अच्छा लिख लो मिलिशिया के बारे में। अब इतना जब समझना है तो अब लिखो मिलिशिया क्या होता है। चले रब दिस। सर आप कुछ बता रहे थे जब वो एक बार Yes, उन्होंने yes, आर्म्स sir. ले लिए उसके कोई बाद बात नहीं। उनकी लड़ाई मिलिशिया- होती है कमांडर से। मिलिशिया यहाँ पे आई होगा। मिलिशिया के बारे में लिखो। अ मिलिट्री फोर्स that is raised from the civil population, okay, to fight in case of emergency. लिख दो यार, लिख लिया सभी ने? सर आप लिख दो एक बार। लिख दो। मिलिटरी फोर्स जो किससे बनी है? पॉपुलेशन। ठीक है, in order to fight in an emergency situation. अब क्लियर है? सर इनको थोड़ी मतलब इन्हें थोड़ी सी नॉलेज होती है इस तरह के? ये जो पॉपुलेशन होगी ये सिविल पॉपुलेशन होगी। हाँ बोलो। सर इन्हें मतलब ये स्किल्ड होते हैं इस चीज में? नहीं, स्किल्ड नहीं होते हैं, सिविल पॉपुलेशन से बने हुए हैं। इन ऑर्डर टू रेजिस्ट ट्रूप्स, ठीक है, उन्होंने इमरजेंसी में अपना क्या बनाया? एक मिलिट्री फोर्स बनाया जो कि फाइट करेंगे। अब इस मिलिट्री फोर्स को क्या चाहिए था? आर्म्स एंड एमिनेशंस। तो इन्होंने बेस्टाइल में जाके अटैक किया। वहां के जो कमांडर थे, वहां के कमांडर को इन्होंने मार दिया। ओके, कमांडर को उन्होंने जब मारा तो उसमें कमांडर के मरने के बाद, ठीक है, वहां के जो प्रिजनर्स थे उनको क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया। प्रिजनर्स वर सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। यस सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए। स्क्रॉल का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या स्क्रॉल करना है? सर जो अभी आपने जो हमने पहले लिखा था वो रह गया थोड़ा सा, तो एक बार ऊपर कर दीजिए पेज दोबारा। साथ ही साथ लिखते चलो ना फिर, अदरवाइज। सर लेकिन उन्होंने कैदियों को क्यों छुड़ाया? उनसे उनको क्या फायदा हुआ? अरे छुड़वा दिया, लगे हाथ। अब अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ओके, सर उन्हें लगा होगा कि ये जो है ये हमारे ही हम में से मिल जाएंगे
और फिर हमारी जो वो है क्या कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी मदद करेंगे सर। जैसे 1957 में यही होता था कि जेल से छुड़ा देते थे सर लोगों को। ये फोर्ट्रेस का मतलब यहाँ 1957 में कौन सा पे युद्ध है हुआ ना? था, जरा बताना आप। सर सर पता 1940 1957 में कौन सा युद्ध है, ये कौन कह रहा है बार बार 57? सर कृष्णा। सर पता सर नहीं, समझ नहीं 40 आ सर 47 50 नहीं 40। अच्छा 47, ओके 1947। हाँ, अब सर इस फ्रीडम के स्ट्रगल में तो ऐसा हो 47 में आज़ादी मिल गई थी। जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कई सारे मूवमेंट चले थे, ठीक है। उस दौरान क्या होता था, प्रिजनर्स जो कि फ्रीडम फाइटर्स है उनको जेल में डाल दिया जाता था, फिर उसके उसके अगेंस्ट कंसर्न रेज होते थे, लोग प्रोटेस्ट करते थे तो उनको रिलीज कर दिया जाता था। कई तरह के मूवमेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो दीज आर द सर डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट। सर सर जो ये रिवोल्ट होते हैं सर, जो इनके जब ये खत्म होती हैं तो जो ये जब ये खत्म होती है तो उसको जैसे 18 जैसे 1857 की क्रांति कहते हैं वो पहले से चलती आ रही है। फिर उसे 1857 की इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे खत्म हुई थी, जैसे 1947 की रिवॉल्यूशन। 1947 की रिवॉल्यूशन है। चलो रहा। ठीक है, सर अभी वो आप सर जो रेवोल्यूशन थोड़ी है, फोर्ट्रेस अभी आपने वर्ड सर वो लिखा तो है वो मूवमेंट ऑफ क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस था। हाँ, फ्रीडम फाइट अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो तो। ठीक है। सर और एवोल्यूशन तो 1857 में हुई थी। हाँ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। सर फोर्ट्रेस का मतलब अब देखो, अब ऐसा करो, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो एक डिक्शनरी भी रख लो साथ में। ओके। सर फोर्ट्रेस का मतलब किला नुमा। हाँ, किल्लानुमा मैंने 2-3 बार रिपीट किया है। तो इफ यू सर आर जैसे फेसिंग मतलब प्रॉब्लम, किले if you are facing problem in English, I think you should have a dictionary with you. Okay. सर आपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन के ऊपर क्या वर्ड लिखा था एच आर्म्स से? एंड एमिनेशन वहां पे होडेड, उन्होंने सोचा होडेड कि वहां पे आर्म्स एंड एमिनेशन क्या है, छुपे छुपे होंगे, हम लोग जब उस पर अटैक करेंगे तो वहां से आर्म्स एंड एमिनेशन निकलेंगे, मिल जाएंगे हमें, जो कि हमें हेल्प करेंगे इन ट्रुप से लड़ने में। बट हुआ कि ये कि वहां आर्म्स एंड एमिनेशन तो मिले नहीं वैसे, और कमांडर थे, कमांडर से फाइट हुई, कमांडर मर गए, और वहां पे 7 प्रिजनर्स थे, उन प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। अब जब ये प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया इन लोगों ने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैस्टिल को, ठीक है, किसको, प्रिजन बैस्टिल को। ओके, बैस्टिल को इन्होंने क्या किया, डिमोलिश कर दिया। क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। और इसको तोड़ने का कारण क्या था, बिकॉज इट वॉज हेटेड बाई, लिख लो, इट वॉज हेटेड बाई ऑल, ओके, एंड इट स्टूड। सभी लोग लिख लो, बाद में मैं इसको जो है कि फिर से जो है स्क्रीन मिटा दूंगा, तो फिर से नहीं स्क्रीन पे ले आऊंगा, ठीक है। फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। पावर ऑफ किंग, ये मैंने डेस्पोटिक शायद बता रखा है, ओके, फिर से बता देता हूं। डेस्पोटिक मतलब एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग, मोनार्क एज यू नो। तो इनके पास किस तरह की मेनली पावर होंगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझा रखा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में, दैट द किंग विल हैव द एब्सोल्यूट पावर इन दिस फ्रंट। तो और यस सर। क्या करते थे, रूल करते थे। तो दिस डेस्पोटिक पावर, people were against this despotic power, and that's why they hated Bastille and they demolished Bastille. अब Bastille के जो स्टोन थे, स्टोन को क्या किया गया, फ्रैगमेंटेड, ऑब्वियसली, जो टूटे हुए पत्थर थे, बिखरे हुए पत्थर थे, उसको सेल किया गया मार्केट में, ठीक है, सेल किया गया कहाँ, मार्केट में, लोगों ने खरीदा इसको, ठीक है, और उसको एज अ सोविनियर, राइट इट डाउन, सोविनर, सही है, सोविनर,
SNI सर इसकी स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना आप लोग, थी, ठीक है। ऐसे कुछ था। Sovinia or its destruction. Here it's refers to Bastille. हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा है? सर इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि जब बेस्टिल टूट गया तो उसके स्टोन सभी ने खरीदे, ठीक है, मार्केट में उसके स्टोन बिकने लगे और लोगों ने खरीदा, ठीक है। एक निशानी किसकी? बेस्टिल की। अब जैसे होता है ना, घरों में कुछ निशानी के तौर पे सजा के रखते हैं कि देखो ये जो है ये एक कुछ भी कह लो XYZ, ठीक है, कोई भी प्रीसियस वन। बेस्टिल भी क्या था? प्रीसियस वन था, किंग के पावर को रिप्रेजेंट करता था। तो लोगों ने अपने घर पे लगाया एज अ सोविनियर, दिखावा के लिए, ठीक है, एक याद के लिए कि देखो हम लोगों ने तोड़ा था, ये उसकी निशानी है। बेस्टिल का ये पत्थर है। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। लेकिन सर गवर्नमेंट ने रोका नहीं बेचने से। गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? जब पीपल अटैक करते हैं एक साथ, जब वो और उनकी तादाद 7,000 8,000 हो, ओके, तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और जो ये अभी बात हुई, अब इतनी सारी जो बातें हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्यों रिएक्शन नहीं लिया, क्या कारण था, ये हम जब कहानी जब रेवोल्यूशन को और आगे फर्दर पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो एक सिनेरियो है जो सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया ही नहीं है चैप्टर, एक्चुअली एक इवेंट के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड अगर डाउटफुल लग रहे हो तो अभी के लिए वो होल्ड करो उसको, पहले ये बात पूरी सुन लो, ओके। एक यहाँ तक हम लोग जब चैप्टर में आएंगे तब कोई डाउट होगा तो मुझसे बताना, एंड आई बिलीव कि आप सभी के डाउट्स उस दौरान क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे चैप्टर। ये पॉइंट चैप्टर में फिर आएगा। Is that clear? Is it clear to Yes, sir. everyone? यस सर, यस सर। यस सर। अब होता क्या है कि राइट्स बढ़ते Excuse चले me, जाते sir. हैं। सर पेरिस मैं में 5 होते मिनट के लिए हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आपने वो मतलब कमांडर को और फ्रीमेंट के बाद में आपने क्या बताया था? उसके बाद में यही बताया कि बेस्टिल को इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। बेस्टिल को लोग हेट करते थे। इट स्टैंड्स फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, ओके। और जब उसको तोड़ा गया, डिमोलिश किया गया, तो उसके फ्रैगमेंटेड स्टोन मार्केट में बिकने लगे, लोग खरीदने लगे, ठीक है, एज अ सोविनियर। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके बाद राइट्स वगैरह फैलने लगे पेरिस में और कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? दो सर उसके आसपास ही होगा। सर विलेज। कंट्री के किनारे, नदी के किनारे कोई कह रहा है? कंट्री के किनारे। ये विलेज कौन कह रहा है? बहुत धीरे से। सर नियर बाय कंट्री। वेट, किसी ने विलेज कहा है? विलेज कौन कह रहा है? सर नारायण। एज ऑफ द कंट्री। सर मनोज। अरे विलेज यस किसने सर, कहा? मैंने कहा था अर्नब। सर मैंने सर मनोज। नारायण। सर अर्नब। नारायण इज करेक्ट, ठीक है। कंट्री साइड, ओके। अर्नब का नारायण। विलेज और रूरल एरियाज को कंट्री साइड कहते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा, पेरिस एंड कंट्री साइड में क्या होता है, ये हर जगह यूज किया जाएगा वर्ड, मतलब अलग अलग जगहों पे यू विल फाइंड द नेम कंट्री साइड। जब भी कंट्री साइड वर्ड आए तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट रेफर्स टू विलेज और रूरल एरिया, ओके। तो अब नेक्स्ट यू विल फाइंड दैट अब सीरीज ऑफ यहाँ पे क्या होता है, राइट्स होते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, एंड इवन एट द लास्ट यू विल फाइंड दैट किंग वाज एग्जीक्यूटेड। किंग क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट, मरना पड़ता है उसको। So what happened? What led to this destruction? Even the historians were not aware of the fact. तो हुआ क्या था? Now we will begin the main chapter. Okay? Should I rub this? So Yes, sir. please wait a while. Yes, sir. तो मतलब क्या? यस सर। यस। So, sir, actually, we will just reading the summary of this chapter. This is an event which has been discussed over here, and you will find that what was the cause behind this. Okay? When you will go through the chapter, okay, thoroughly. अब फ्रेंच में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द, पहले सोसाइटी समझते हैं।
अब स्टार्ट होगा आपका चैप्टर ड्यूरिंग द लेट। आप सभी लोग अपने बुक को पढ़ेंगे। आफ्टर दिस क्लास यू विल गो थ्रू योर बुक, ओके। और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। एक्चुअली होता क्या है, जब क्लासरूम प्रोग्राम में होते थे हम लोग, जब मैं पढ़ाता था तो ये रीडिंग होती थी, मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करता था। बट दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट सुटेबल फॉर रीडिंग एट ऑल, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो कनेक्शन की प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं सारे चीज़ों को आपको लगभग एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी इन केस कुछ छूट जाता है तो यू विल गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, ओके। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एक इसमें सिनेरियो क्या है आज के डेट में सोशल साइंस के पेपर में, कि हो ये रहा है कि एग्जाम में बुक के ही टेक्स्ट को, पैराग्राफ्स को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अब पैराग्राफ्स वगैरह भी आ रहे हैं, अब उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन होता है। कभी कदार उसके बेस पे होता है, कभी कदार उसके बेस पे नहीं भी होता है। तो आपको ये, जब आपने ये टेक्स्ट ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ रखे हैं, क्लास में समझ रखे हैं और आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो यू विल फाइंड दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस टेक्स्ट वॉट एवर रिटन ओवर हियर। आपको लगेगा अरे तो मैंने पढ़ा है, तो ये नहीं पढ़ के आप सीधे क्वेश्चन आंसर पे आ जाओगे, और जिसने अच्छे से पढ़ा सीधे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देगा। सर अब तो लॉकडाउन खत्म होने वाला है सर, जैसे स्कूल ओपन हो रहे हैं वैसे कैल्विन 8 की जुलाई को क्लासेस। सुनने में आ रहा है 8 जुलाई से आपकी क्लासेस चलेंगी फ्रॉम 8 to 12, ओके। यस सर, सर वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग होगा नहीं, और सैनिटाइजेशन सब होगा, सब होगा। 8 to 12 मतलब क्लास 8 से 12 तक ना। अब ये सुनने में आ रहा है, अब कितनी सच्चाई है इस बात में ये देखना होगा हमें। सर ये भी ह्यूमर है सर, ये भी ह्यूमर है जैसे बाकी ह्यूमर थे। ह्यूमर नहीं, ह्यूमर, ठीक है। चलो ठीक है, ह्यूमर बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 70-74 का टाइम पीरियड है, और लुइस 16 थ्रोन पे आते हैं। ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? बर्बन डायनेस्टी। बर्बन फैमिली या बर्बन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। एक इसकी बिस्किट भी आती है बर्बन, खाया है आप सभी ने? यस सर, इनकी फैमिली ने वो किया है, क्या कहते हैं, लॉन्च। हाँ, तो इसको अब इससे रिलेट मत कर देना, मैंने आपको याद रहे इसलिए कह दिया, ठीक है। अब उन्होंने जब असेंड किया था, व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, ही वाज मेयरली 20 इयर्स, 20 साल के थे। 20 years old। 20 साल के उम्र में राजा बन गए और शादी कर ली इन्होंने। किससे शादी की इन्होंने? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उन्होंने शादी कर ली, जिनका नाम है मैरी एंटोइनेट, ओके। इनसे शादी भी हो गई इनकी। अब इसके बाद शादी के बाद इन्होंने क्या पाया, जब इनको दूर करने गए तो ये इन्होंने फाइंड किया कि जो ट्रेजरी है, खजाना है, जो सरकारी खजाना है, वो क्या है? एम्प्टी है। अब राजा हो गए, शादी हो गई, अब जब रूल करने की बारी आई तो देखा कि खजाना क्या है? खाली है। अब ये टेंशन में आ गए कि खजाना खाली है, कैसे रूल करेंगे। तो इस एम्प्टी ट्रेजरी होने का कारण क्या था कि सालों से क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ। सर उन्होंने बहुत सारे मनी वेस्ट कर दिए थे पास्ट वॉर्स। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर की वजह से यहाँ की जो ट्रेजरी क्या थी, सरकारी खजाना क्या था? खत्म हो सर गया। आईफिल टावर भी इन्होंने बना के दे दिया था सर पीस के लिए अमेरिका के साथ सर, उसके कारण भी एम्प्टी हो गया। हाँ, अभी सर अभी जब इससे ऊपर वाला ये इवेंट सारी पढ़ा था, बातें जो आईफिल टावर और इससे रिलेटेड बातें हैं, ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कॉपी में मत लिखना कहीं पे भी, ओके। अब इसमें और देखो एडिशनल खर्च ये तो ठीक है, वॉर की वजह से तो हुआ ही। एडिशनल खर्च क्या थे इनके? एडिशनल खर्च में देखोगे तो मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रावैगेंट, यही टर्म यूज किया गया। एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट वर्सल। एक्सक्यूज मी सर, जो अभी हमने इससे ऊपर वाला इवेंट पढ़ा वो इसके बाद का है ना? नहीं, वो तो एक इवेंट हम लोगों ने पढ़ा है जो अभी बीच में आएगा। अब मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब वो जो इवेंट हम लोगों ने पढ़ा है, वो इवेंट हम लोग मीनवाइल जब ये रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसी में वो इवेंट आएगा, ओके।
ओके, वो इवेंट लेकिन बीच में अभी आएगा। अभी ये सिर्फ आपका चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली। वो सिर्फ एक इवेंट आपसे डिस्कस कर लिया गया। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर द ऑथर हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन यू एन एडिशनल थिंग, ठीक है। और मतलब एक एन एडिशनल थिंग या रेफर्स टू कि बस एक समझाने के तौर पे ऐसा हुआ था। इंट्रोडक्शन होता है ना कभी कदार हम कोई बात शुरू करते हैं तो कहते हैं कि Yes, उसका sir, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा, एक इंट्रोड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। हाँ इंटरेस्ट बनाने के लिए कि बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन को तोड़ दिया और किंग भी बाद में मर जाता है। अच्छा, किंग क्यों मरता है जानने के लिए आगे देखिए। तो चैप्टर आपका क्या होगा, शुरू होगा, Sir, उसी को जानने के लिए आप सस्पेंस। ये जो करो, सोसाइटी थी काइंड ये ऑफ अ सस्पेंस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक में कहाँ थे कि जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी हो जाती है। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हमने पढ़ा कॉज है, और क्या कॉज है, एक एक्स्ट्रा वैगन कोट है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चीला कोट वर्सेज, उसको भी मेंटेन करना है इनको। इसके अलावा और क्या है, इन्होंने क्या किया था, अब शैल आई रब दिस? यस सर। नो सर। Yes, sir. ओके, Yes, जिसको समझ जाता है वो बाद में वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है। लुइस 16 ने क्या किया था, एक बार स्क्रॉल कर दीजिए सर, आप बड़ी जल्दी बता देते। आई थिंक मैंने सभी से पूछ लिया था। टाइम पढ़ना सर लास्ट वर्ड रह रहा है। चलो अच्छा, सर यहाँ पर सर असेंडेड का मीनिंग क्या है? केम टू थ्रोन। सर व्हाट? केम टू थ्रोन। सर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा, ये क्या लिखा है वर्ड? एक्स्ट्रा वैगेंट, बहुत ज्यादा खर्चीला कोट था वर्सेस। डन। फुल ऑफ फैसिलिटीज सारा सर ये। यस सर। तो सर मतलब उसमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करनी थी, उसका भी खर्चा रहता था इनका। हाँ, उस कोर्ट को भी संभालना है, वॉर भी लड़ लिया है इन्होंने, और सर इसके ये अलावा और भी। कैसा कोर्ट था? हाँ, सर ये कैसा कोर्ट था, हमारा जुडिशरी वाला कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट? ये कैसा कोर्ट था सर? किंग का कोर्ट है। किंग का क्या होता है, कोर्ट होता है जिसमें वो बैठते हैं। ओके, अच्छा, मतलब किंग का शाही महल। हाँ एक तरीके से कोर्ट, महल, दरबार। हाँ कह सकते हो, इन वन वे और दी अदर। ओके, कोर्ट में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो किंग, हाँ। अब सर, किंग अभी का किसी कोर्ट बच्चे है ने- जहाँ पे कोर्ट में होता है ना कि मंत्री वगैरह सब बैठते हैं, ठीक है, एम्परर बैठता है। अगर सपोज एम्परर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्परर बैठा उसके साथ सर ये सारी चीजें तो अब एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि सर शायद तोड़ दी गई होंगी या है। नहीं, तोड़ी नहीं गई होंगी, तोड़ी नहीं जाती हैं, ठीक है, काफी बड़ा होता है। ओके, जो है कि बहुत पैसे लग नहीं के बने होते हैं। सर अब जो जैसे चीजें अब तोड़ लाल देते किला सर, है, जैसे रुको, लाल किला है तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लाल किला है, जो ये किला बना है फोर्ट लाइक रेड फोर्ट, तो ये इसमें भी कोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे भी कोर्ट था सेपरेट, जहाँ पे बैठते थे यहाँ के क्या मुगल एम्परर। तो वो कोर्ट थे जहाँ पे Yes, लोग sir. एक दूसरे से इंटरेक्ट होते थे, और जो है कि जो भी Yes, sir. जजमेंट रिलेटेड वर्क होता था वहां पे होता था, ठीक है। आज के डेट Sir, में क्या just, ऐसे तोड़ दिया गया है? नहीं, ये एक क्या है, हेरिटेज है, ठीक है, एज अ हेरिटेज सर मेमोरी के तौर पर रखा गया है। अब आ जाओ तो पहले सर हम अभी लोग पे आते हैं। सर बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ दिया था सर इन्होंने वेट वेट, क्या नाम है, कृष्णा नाम है? यस सर। वेट करो, ठीक है, अपने डाउट को जब मैं पूछूंगा डाउट है तब अब जो है कि आप बोलेंगे, ठीक है। पहले आप कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है कृष्णा, वेट करो फॉर अ वाइल। हम लोग अपने Yes, टॉपिक, हाँ टॉपिक पे पहले आते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए टॉपिक पे। तो अब इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजन, एक तो पढ़ा कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, फिर हमने एक्स्ट्रा वैगेंट कोड पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे इन्होंने जो एम्परर हैं, किंग हैं, जो किंग हैं, इन्होंने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज, सर लुइस 16 ने, ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज के
फाइट में, फाइट अगेंस्ट हुम, ब्रिटेन में हेल्प किया था। ओके, तो ब्रिटेन, ये फ्रांस, किंग है फ्रांस। तो अब ये क्या है, ब्रिटेन क्या था, इनका एनिमी था फ्रांस का। एट दैट टाइम ब्रिटेन वाज एनिमी ऑफ फ्रांस, और फिर ब्रिटेन इनका भी क्या था, एनिमी था। तो एक सुना है ना कहावत आपने, एनिमीज एनिमीज एनिमी फ्रेंड, तो ये क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, इनका एनिमी और उनका एनिमी, इनका क्या हो गया, दोस्त हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, Yes, sir. एनिमी फ्रेंड। ठीक है, तो ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करते हैं, ठीक है, फाइट अगेंस्ट सर ये ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए। दिस फाइट वाज ड्यू फॉर इंडिपेंडेंस, दिस फाइट वाज फॉर इंडिपेंडेंस। अब इसमें हुआ क्या, इस फाइट की वजह से बिलियन ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवरेज का क्या हो गया, उधार हो गया, डेप्ट हो गया, एंड इट वाज नियरली मोर देन 2 बिलियन से ज्यादा। ओके, मोर देन 2 ही लिख लेते हैं। इट वाज नियरली मोर देन सर स्क्रीन पे सर पूरी वाइट है। 2 बिलियन। Someone is saying something. Okay, leverage क्या होता है? Yes. सर जो अभी हम यहाँ किंग की बात कर रहे हैं वो लुई 16 ही है ना? हाँ, लुई 16 की बात हो रही है यहाँ पे। अभी थ्रोन पे कौन आया, लुई 16 ही आया ना। सर जो हेल्प करी थी वो लुई 16 ने करी थी, उससे पहले वाले किंग्स ने। करेंसी ऑफ दैट पीरियड। लिवरेज पहले लिखो, यूनिट ऑफ करेंसी। सर जो हमने लास्ट पेज में एक लिखा था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, और एक ये दूसरी वॉर है सर, ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट, ये दोनों वॉर्स डिफरेंट है कि सेम है? यस सर, ये सेम है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। और हालांकि ब्रिटेन से तो फाइट चल ही रहा था इनका, ठीक है। सर जिस टाइम पे वॉर हुई थी उस टाइम पे ब्रिटेन का किंग कौन था? इस वॉर को इसी से रिलेट करो। ओके, अब ये 13 अमेरिकन की जो फाइट थी बहुत लंबी चली थी ब्रिटेन से। ओके, और इसमें जो है फ्रांस ने मदद की, जब फ्रांस ने मदद की तो इनके पैसे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब ये क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स में आ सकता है आपके एनटीएससी में एज वेल एज सीबीएसई में। सर जो किंग्स ने हेल्प करी थी, सर लुई 16 ने हेल्प करी थी या फिर जो उससे पहले बिफोर जो किंग थे उन्होंने हेल्प करी थी? उनको वो भी हेल्प कर रहे थे, लुई 16 भी हेल्प करे, ठीक है, हेल्प किया लुई 16। अब देखो मेन, अब यहाँ पे देखो तो लुई 16 का भी रोल है थोड़ा बहुत। अब जो मेन यहाँ पे रोल था वो इनके अर्लियर किंग थे। ओके, जब अर्लियर किंग थे, जब इन्होंने फाइट में जो है क्या किया, साथ दिया, तभी तो ये क्या था, ट्रेजरी एम्प्टी था। ट्रेजरी एम्प्टी होने का कारण क्या है? यस सर, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपने लुई 16 बताया। यस सर, इस वॉर के टाइम पे ब्रिटेन का गवर्नर जनरल कौन था? लुई 16 का भी एक सॉफ्ट कार्नर था, और आप अभी आगे पढ़ोगे कि और भी क्या, किस तरीके से ये हेल्प करते हैं, ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर दिया इसको, ठीक है। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन हट गया था, वो बता सकते हैं कि ये वाला पेज बस। क्या नाम है आपका? सर सत्यम गोयल। सत्यम, चलो ठीक है, एक बार आप वीडियो भी देख लेना, ठीक है। मैंने बताया कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज के फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन फॉर इंडिपेंडेंस में किंग ने क्या किया था, हेल्प किया था। ओके, और जो किंग ने हेल्प किए थे इसमें, इसी के वजह से जो इनके ऊपर उधार था वो बिलियन ऑफ लिवरेज पहुंच गया था, लगभग 2 बिलियन लिवरेज। लिवरेज क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस टिल 1794। 1794। यस, यहाँ पे लिख लो 1794। सर ये ट्रायंगल क्या बन जा रहा है? ये ट्रायंगल बन गया, इसको इग्नोर करो। ओके सर, फिर जो अभी हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये वॉर्स वाले कॉलम में लिखे हैं कि जो लॉन्ग वॉर्स। सर अब कौन सी है फ्रांस की यूनिट ऑफ करेंसी? सर 1794 तक ही थी, क्योंकि ये तो हाँ, तो 1794 तक थी यूरो। यस,
फिर उसके बाद सर ये जो अमेरिकन कॉलोनीज है इनको हेल्प करके फ्रांस को क्या फायदा हुआ? क्या ये जो अमेरिकन कॉलोनीज है इनको हेल्प करके फ्रांस को क्या फायदा हुआ? इनका तो नुकसान ही हो गया ना 2 बिलियन लिवर्स का। अरे नुकसान हुआ है तो बट ये तो देखो ब्रिटेन के पावर को घट रहा है, अगर तो ब्रिटेन का अगर पावर घट रहा है तो फ्रांस को फायदा नहीं हो रहा है। यस सर। यस सर, उसका दुश्मन था, उससे तो मजा आ रहा है। ठीक है, अब वो ठीक है, उसके पैसे खत्म हो रहे हैं वो बात अलग है। ओके यस सर। यस सर। सर क्योंकि तब जब ब्रिटेन था तब उसका दबदबा था ना सुनो सर, क्योंकि वो कॉन्कर कर रहा था इसीलिए उससे। सुनो सुनो ठीक है, अभी हम लोग इस पे जाएंगे टॉपिक पे, पहले हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक को समझते हैं आगे। इसमें क्या था कि लेंडर जो अभी ये 2 बिलियन लिवरेज अभी हम लोगों ने पढ़ा, 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है, मोर देन 2 बिलियन एक्चुअली। ओके, जो मोर देन 2 बिलियन लिवरेज था, इसमें इन्होंने क्या किया था, उधार लिया था। किससे? लेंडर्स से उधार लिया था। लेंडर्स ने इन्हें जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करना शुरू कर दिया था। किस पे? ऑन लोन। जो लड़ाई भी लड़ी वो किस पे लड़ी? लोन पे लड़ी। आज जब इन्होंने लड़ाई ही लोन पे लड़ी है तो जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो क्या हो गया? लोन का बढ़ता चला गया। जो भी इनके पास रिवेन्यू आते थे टैक्सेस वगैरह के तौर पे, जो भी रिवेन्यू इनके पास आते थे उस रेवेन्यू में ये इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करने लगे। इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ इनको क्या था, इनके साथ और भी क्या प्रॉब्लम थी? आपने एक्स्ट्रा वैगन कोड तो पढ़ा ही है, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, ओके, गवर्नमेंट ऑफिसेस। सर ये रेवेन्यू का क्या पॉइंट है? कोड रेवेन्यू मतलब जो पैसे आते थे, आप सरकार को क्या करते हो? टैक्स देते हो। सर रेवेन्यू का मतलब टैक्स है। टैक्सेस देते हो तो सरकार के पास एक पैसा आता है, उस पैसे से क्या करती है वो इस तरह की एक्टिविटी एग्जीक्यूट करती है। तो जो लोन लिया था इन्होंने वॉर के दौरान, ओके, उस वॉर के लोन का ये क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे, जो कि रेवेन्यू का बड़ा पॉइंट बताया था कि वो रेवेन्यू बढ़ रहा था या शायद इंटरेस्ट बढ़ रहा था, कुछ इस तरीके का पॉइंट था। रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा था? इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा था, उसके वजह से इनके ऊपर दबाव बनता चला जा रहा था। अब जब दबाव बन रहा था तो इन्होंने क्या किया? ही डिसाइडेड टू रेज टैक्सेस। क्या डिसाइड किया? कि हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे थ्रू टैक्सेस। आई विल इंक्रीज टैक्सेस। सर पहले से कितना उसमें डेप्ट बढ़ा हुआ था और वॉर्स ने कितना डेप्ट बढ़ाया, ये उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, यही तो बताया है। मतलब सर वॉर्स ने मोर देन 2 मिलियन लीवरेज बढ़ा दिया था और पहले से ही वो 1 मिलियन बढ़ चुका था। पहले से बिलियन लिवरेज के उसके ऊपर उधार थे और वॉर की वजह से वो और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। ठीक है, और मोर देन 2 बिलियन लिवरेज पहुंच गया। और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट का पैरा समझ नहीं आया। इंटरेस्ट पेमेंट, जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो वो इंटरेस्ट पे मिलता है। ओके, तो इनको जो है, जो लेंडर ने इन्हें लोन दिया उन्होंने जो है फिर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और इंटरेस्ट कितना? 10%। अगर 100 रुपए लिया है आपने तो 10 रुपए इंटरेस्ट दोगे, दैट्स ऑल। पढ़ा है ना SI और CI क्लास 8 में? सर अभी लेंडर जो एक गवर्नमेंट है उससे ज्यादा अमीर थे। यस सर। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को भी अब जैसे कि आज के डेट में अगर रिक्वायरमेंट है तो PM कह रहे हैं ना कि PM केयर फंड में पैसे डालो। यस सर। तो लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब ये समझाने की बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक अंबानी, टाटा एंड अंबानी, ठीक है, जिसके पास अरबों रुपए हैं, तो वो तो उधार दे सकते हैं ना। यस सर। सर लोग मेन टॉपिक को समझ नहीं रहे हो। ठीक है, पहले मेन टॉपिक को समझो, फिर जो बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करो। पहले सुनोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। और इसमें मेंटेनेंस को कैसे आ गया? चलो डाउट को अभी रोको, अभी पहले कंटेंट समझो। अब हमने समझा कि ये फिर से सुन लो, मोर देन 2 बिलियन लिवरेज का लोन हो गया है। लेंडर्स 10% लोन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन पे जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा इनको जो है आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट वगैरह भी क्या करना पड़ रहा है? संभालना पड़ रहा है। अब किंग ने क्या डिसाइड किया कि आई विल रेज टैक्सेस।
ठीक है, यू विल फाइंड दैट किंग हैज डिसाइडेड टू रेज टैक्सेस। अब ये टैक्सेस पढ़ने से पहले okay, सर इसमें मेंटेनेंस वाला समझा दो एक बार। मेंटेनेंस ऑफ आर्मी क्या समझना है इसमें बताइए जरा। सर इसमें इनको टैक्स की पेमेंट देनी पड़ी, तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ आर्मी वाला कहाँ से आ गया वो समझ नहीं आया। एक गवर्नमेंट का क्या रोल होता है आप जानते हो? यस सर। क्या होता है? सर आर्मी को मेंटेन, ऑफिस जितनी भी उनकी गवर्नमेंट ऑफिस है उनको मेंटेन करना। सर ये जो वॉर था अब ये कंट्री को रन करने में डिफेंस कौन देखेगा? आर्मी। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग तरह के काम होते हैं, वो कौन देखेंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कोर्ट होगा जो जुडिशरी रिलेटेड वर्क करेगा। तो यही सारे हैं, इन सब के लिए पैसे चाहिए ना भाई। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे यही रेवेन्यू टैक्सेस से आते हैं। अब देखा जाए पेमेंट तो इंटरेस्ट पेमेंट हो जा रहा है, तो ये भी उसके साथ काम करना ही है। कंट्री को तो रन हर हाल में करना है, तो क्या किया जाए? नो वे आउट दिख रहा है, तो अ वे आउट इज टैक्सेस बढ़ा देते हैं। वो ज्यादा पैसा आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से काम होगा। सर जो ये टैक्सेस सर ये इसलिए टैक्सेस बढ़ाने से डरते थे ना कि रिवोल्ट हो जाएगा सर, क्योंकि कई कंट्रीज में हुआ होगा ऐसे टैक्स बढ़ाने पर वो दे। कृष्णा, आप डाउट रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। आप जो क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत सारी चीजों को, ठीक है। डाउट रिलेटेड आप क्वेश्चन को पूछिए। वो देखो कुछ भी सकता है, ठीक है। हम अनुमान यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, हमें कंटेंट को समझना है पहले। एक्सक्यूज मी सर, जो ये वॉर क्या नाम है? कृष्णा। यस सर, यस सर। आपको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, आप इन चीजों को जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। एक्सपेक्टेशन वाला सर डाउट्स कब पूछूं मैं? हाँ, डाउट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाला काम हम लोग एट द एंड में सारा करेंगे, उसमें आपके व्यूज भी लिए जाएंगे, ठीक है। सर ये जो वॉर था ये लुईस 16 से पहले भी चल रहा था और लुईस 16 के टाइम भी चल रहा था, तो अभी हम यहाँ लुईस 16 के टाइम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लुईस 16 के टाइम की बात हो रही है। जब वॉर हुआ तो जब लुईस 16 आए तो एम्प्टी ट्रेजरी था, और वॉर अभी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1777 1776 1777 के पीरियड में ही हुआ था। तो उसी दौरान अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखो। चलो तुम लोग आउट ऑफ कोर्स जा रहे हो, कोई बात नहीं, क्लास उतनी ही लंबी चलेगी, मैं क्लास उतनी लंबी छोड़ूंगा ही नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। सर आपकी आवाज बीच में से हट जा रही है। क्या हो रही है? सर आपकी आवाज बीच बीच में एकदम से हट जा रही है और बाद में एकदम से सारी आपकी साउंड आ जा रही है बहुत ही फास्ट में। सभी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? और ना नो सर। नो सर। नो सर। तो हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो। नो सर, लेकिन कभी कभार आपकी बहुत कट जा रही है। नहीं सर। सर आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क? हाँ बोलिए। सर हाउ सर हमने कैसे फाइंड किया कि जो वो बेस्टेल प्रिजन था वो जो वो थी बनाई थे 7000 पीपल ने मिलिट्री से लड़ने के लिए, वो उन्होंने तोड़ा, वो हमने कैसे पता लगाया? वो हिस्टोरियन ने पता लगाया ना, हम और आपने तो पता लगाया नहीं, ठीक है। तो कौन पता लगाता है? यस सर, हिस्टोरियन। हाँ, हिस्टोरियन अब देखो लुईस 16 के टाइम भी चल रहा था, एंड ऑलरेडी जो उनका खजाना था वो खाली था, लेकिन अब लुईस 16 के टाइम पे भी वॉर चल रहा था, तो अब उनका डेप्ट और बढ़ गया था। हाँ, डेप्थ बढ़ता चला जा रहा था। यस, आप लोगों ने अभी मुझसे कहा कि ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जब चैप्टर पढ़ लिया तो मैंने कहा ठीक है आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। उल्टा आप लोगों को बहुत सारी हेल्प चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सर स्कूल में तो लाइव क्लासेस उस टाइम चल नहीं रही थी, तो अच्छे से समझ नहीं आया। अच्छा, सर मैंने भी नहीं बोला था। उल्टा सर जिन्होंने बोला था वो चुप मैंने तो बोला नहीं था, जिन्होंने नहीं बोला सर, मैंने बोला था, लेकिन मेरे को आ रहा था। चलो ठीक है, कोई बात सर नहीं। चैप्टर तो पढ़ लिया था सर, लेकिन आपको बताया था ना मैंने कि मेरे को क्लियर नहीं था। अच्छा, चलो ठीक ये है। चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बहुत अलग-अलग इवेंट्स, अलग-अलग। अब देखो, स्कूल में क्लियर नहीं हुआ वही पूछ रहे हैं सर। अब मेरी एक बात सुनो, सर बहुत अलग अलग चीजें।
सभी लोग पहले चुप, अपने माइक को क्या करिए, म्यूट करिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, ठीक है। इस समय कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो पूरी गतिविधि को 1789 से और 1794 तक, जो लोग हम जहां तक हम लोग पढ़ेंगे, उसको खड़े होके जो है लिख रहा था। बेस्टाइल टूटा तो उसने किताब में लिख दिया कि बेस्टाइल टूट गया, ठीक है। और उसके बाद अटैक हुआ किंग पे, तो ऐसा नहीं है तुरंत लिख दिया। ये क्या है? सीरीज ऑफ स्टडी हुई, ठीक है। कुछ लोगों ने अपने अपने डायरीज में लिखे, अलग अलग सोर्सेस से कंटेंट उठाए जाते हैं, ओके, और उसके ऊपर एक किताब लिख दी जाती है। फिर उस किताब को और भी लोग जो है पढ़ते हैं, और भी लोग रिसर्च करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वो अपना एंट्री देते हैं। तो हिस्ट्री को क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं हिज स्टोरी, ओके। इसमें मतलब टाइम अपडेट होती रहती है। अपडेट होती रहती है। अब देखो, अब अपडेट नहीं हो रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये जो पॉइंट है वो एक्सेप्टेबल पॉइंट है। कोई खड़ा होके एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट कॉजेज नहीं लिखा है किसी ने, ठीक है। लोग नियर बाई तक हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट सिचुएशन को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता लुइस 16 किस तरीके से सोचते थे, क्या उनका मेन जो है मोटिव था, उन्होंने अगर कोई एक्शन लिया तो उसके पहले उन्होंने क्या सोचा था, वो क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी से कि मैंने क्या सोचा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक कंटेंट है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या किया गया, देखा गया, नोटिस किया गया, अलग अलग डायरीज, अलग अलग आर्टिकल्स में से, ठीक है। कुछ लोगों ने जो लिखा था उसको क्लब किया गया, स्टडी की गई और एक उस पर कंटेंट तैयार किया गया, उसका नाम रख दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसके ऊपर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आप जाओगे तो एक किताब मिलेगी आपको जो कि काफी मोटी है, ओके। मार्केट से खरीदो और पूरी किताब फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, वो और ज्यादा डीप एनालिसिस कराएगी आपके इस चैप्टर को। बट हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को उतना समझने की है, तो वी विल फाइंड नो, हमें उतना 1789 और 1794 मेरी बात सुनो पहले, कृष्णा पहले मेरी बात सुनो। तो हम लोग सर इसके पाएंगे, ऊपर एक मूवी भी है। हाँ, हमें ये मिलेगा कि हमें इतना कंटेंट नहीं इसको समझना है, इतना डीप में एनालिसिस नहीं करना है। हमें सिर्फ जो है वो डेटा पढ़ना है जो कि दिया गया है किताब में, उसको समझ लेना है, बस, दैट्स ऑल। क्या हुआ होगा वाला यहाँ पे जो है कंटेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही हमें समझना है, ना ही की जरूरत है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर 17 बोलो। से 1789 और 1794 किस लिए लिखे गए? इसी के दौरान ही तो रेवोल्यूशन नोटिस किया गया ना। जो मेन जो है टाइम पीरियड था स्ट्रगल का, वो यही है टाइम पीरियड, ओके। मेन जो उथल पुथल देखी गई, डिसबैलेंस देखा गया गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, वो इसी टाइम पीरियड का था, इसीलिए इसी टाइम को उठाया गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि क्या है कि यस, उनके ऊपर देखो, मैं पॉइंट भी भूल गया। चलो, अब यहां तक मैंने समझा दिया। इसमें एक कंटेंट है जिसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। आप में से सभी ने पढ़ा है और मैं जानता हूं कि बहुत कम लोगों को ये पता भी है, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम के बारे में लिख लो थोड़ा सा, मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। मेडिवल यूरोप में ये प्रैक्टिस होता था, मेडिवल जो है फ्यूडल सिस्टम, और पर्टिकुलरली इन बिटवीन फ्लरिश किया 9th एंड 15th सेंचुरी यूरोप में, ओके। अब देखो फ्यूडल सिस्टम में देखो क्या होता था कि अब एक किंग के अंडर में कौन आता था? नोबेल के अंदर में कौन? पीजेंट्स। ये समझो, सारे लैंड किसके होते थे? किंग के, ओके। किंग अपने लैंड को किसको हैंड ओवर करता था? नोबेल को। नोबेल क्या करता था? इस लैंड के जरिए, इस लैंड पे पीजेंट से कहता था काम करो, ओके। पीजेंट्स को कहता था ये लैंड तुम रखो, इसी लैंड को ये फ्रैगमेंट कर रहा हूं मैं, ABC करके फ्रैगमेंट किया। यहाँ पे 2-3 पीजेंट्स मान लो, एक इसको दे दिया, एक इनको, एक इनको, इनसे कह दिया ये पीस ऑफ लैंड पे काम करो और इसके बदले में रेंडर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करो? सर्विस
रेंडर करो। ओके, अब फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस को क्या करना है, सर्विसेज देनी है। अब सर्विसेज अगर आप देखोगे तो किस काइंड के सर्विसेज होते थे, उनके घरों में काम करना होता था, किंग के, नोबेल के, आर्मी में काम करना होता था, रोड कंस्ट्रक्शन में काम करना होता था, XYZ जो भी उनके काम है उसमें क्या करो, हेल्प करो। ओके, और ये जो लैंड था, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इट वेरी केयरफुली, देन आस्क योर क्वेश्चन। जब ये यहाँ पे इनको जो लैंड मिली है पीजेंट्स को, ये लैंड इनकी थी नहीं, ये इनको मिली है बाय नोबेल, बाय मीन ऑफ नोबेल। अब पीजेंट्स क्या करते थे कि पीजेंट्स ऊपर एक ड्यू हो जाता था, जिसको कहते हैं हम फ्यूडल ड्यूज। ठीक है, कोई भी बात अगर पीजेंट कहते थे दैट वी विल नॉट गिव दिस काइंड ऑफ सर्विसेज एट ऑल इन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कहते थे वो जमीन जो दिया है आपको, वो जमीन वापस करना होगा, ये आपके पर फ्यूडल ड्यूज हैं। ओके, अब ये ड्यूज क्या होता था, जो है पीजेंट, सपोज पीजेंट में एक फादर है, उसका सन, तो इन सभी से सर्विस ली जाती थी और कहा जाता था ये जमीन आपको दी गई है बाय नोबेल। ठीक है, तो दीज आर ड्यूज विच यू विल हैव टू पे। ठीक है, तो इसी को फ्यूडल ड्यूज कहा जाता है और यही फ्यूडल सिस्टम है। और इस फ्यूडल सिस्टम में यूरोप में देखोगे क्या था कि सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया गया था कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि सबसे ऊपर देखोगे हायरार्की में क्लर्जी थे, फिर उसके बाद देखोगे नोबेल थे, नोबिलिटी, फिर उसके बाद क्या कौन थे, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। ये फर्स्ट ऐसे लिखना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, सर ये भी हमारी कास्ट सिस्टम की तरह ही थी, कुछ उसी तरीके से। ओके, अब इस थर्ड स्टेट में भी आप देखोगे कि फर्दर क्या था, फ्रैगमेंटेशन था। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैसे वाले थे, ऐसा नहीं था कि पूरे लोग गरीब ही हैं। ठीक है, अब इसमें जो पैसे वाले हैं वो कौन है, बिजनेसमैन। आई थिंक यू कैन फाइंड इट आउट इन योर बुक एज वेल, मर्चेंट्स। ओके, सर एक बार पीजेंट वाला समझा दीजिए, वो समझ नहीं आया। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे बिजनेस के बाद, बिजनेस और मर्चेंट्स के बाद नेक्स्ट कौन है, पहले ये समझो, पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, कारीगर वगैरह, ठीक है, चरवाहे वगैरह ये भी हैं। और स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर, ये आखिरी में आते थे। स्मॉल पीजेंट ये बना लेना, एंड लैंडलेस लेबर। ओके, तो ये ओवरऑल थर्ड स्टेट के क्या थे, मेंबर्स थे। फर्स्ट सेकेंड स्टेट यही क्या करते थे, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। सबसे ज्यादा बुरी हालत थर्ड स्टेट की थी। ओके, सबसे ज्यादा बुरी हालत क्या थी, थर्ड स्टेट। जब ये आप पढ़ोगे तो इसमें एक टर्म और आपको मिलेगा, ओल्ड रिजाइन। कौन सा टर्म मिलेगा, ओल्ड रिजाइन। अब इसका क्या मतलब है, ये पूछा जाता है माइंडेड। ठीक है, व्हाट यू विल फाइंड दैट इट डिस्क्राइब्स दिस सोसाइटी and institution, write it down, in France before 1789. Describe the society and institution in France before 1789 is known as old resign. Okay, so this is all are part of feudal system. Okay, सर अब एक बार पीजेंट्स वाला समझा दीजिए। पीजेंट्स वाले में जो मैंने बताया कि किंग है, किंग के पास सारे एक्सक्लूसिव पावर है, लैंड उसी का होता है, वो नोबेल को देते हैं। नोबेल क्या करते हैं, पीजेंट्स को वो हैंड ओवर करते हैं अलग अलग तरीके से। पीजेंट उस लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं। और वो जो लैंड मिली है, अभी हम लोगों ने स्टोरी विलेज पालमपुर में पढ़ा कि लैंड वगैरह चाहिए, लैंडलेस लेबरर वगैरह है, इसकी जो भी इनका जो भी अनाज वगैरह निकलते थे, ये पीजेंट्स के पास होता था। पीजेंट्स क्या करते थे, इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते थे, सर्विस रेंडर करते थे। किसको, नोबिलिटी और किंग को। सर ये रेंडर का मीनिंग है, सर रेंडर का मीनिंग, रेंडर का मतलब होता है कि गिविंग। ओके, प्रोवाइडिंग गिविंग। ठीक है सर, सारा प्रोड्यूस नोबेल्स के पास जाता था, बस पीजेंट्स वहाँ काम करते थे। हाँ, नोबेल किंग की जमीन जो है नोबेल के पास, नोबेल उनसे जो सर सारा प्रोड्यूस मतलब वो कुछ तो रखते ही होंगे सर। सारा मतलब, सारा क्या कहते हैं,
सर मतलब जो प्रोड्यूस करते थे, जो यील्ड करते थे, वो मतलब जो उनका क्रॉप होता प्रोड्यूस था, होता था, वो सारा नोबल। वो उनका होता था। अच्छा, ओके, अब देखो उसमें तो फिर वो टैक्सेस लेते राजा हैं कौन उनसे, कहाँ से मिलता था? उनसे टैक्सेस लेते हैं, अभी आप पढ़ोगे। वो इसीलिए तो उनके यहाँ काम कर रहे हैं फ्री ऑफ अच्छा सर, कॉस्ट, इसका उनके पास मतलब वो जमीन है। नोबल्स का होता था। नोबेल सर के मतलब ये जो स्टोरी नोबेल ऑफ विलेज उनके यहाँ पालमपुर की काम तरह नहीं इसलिए है। करते थे कि उनके पास जमीन है, उनको जमीन मिली है तभी तो वो काम कर रहे हैं ना, अदरवाइज वो काम क्यों करेंगे जब उनके पास जमीन नहीं है। समझ में आया? तो यही बात है यहाँ पे। सर तो मतलब सर जो वो फ्री स्टोरी ऑफ ऑफ विलेज कॉस्ट पालमपुर में होता था काम वो करते यहाँ थे। पे नहीं होता था। स्टोरी ऑफ विलेज सर पालमपुर में हमने जो समझा, जैसे सविता के केस में हमने समझा था, यहाँ पे यस हालांकि सर। उसको जोड़ना मत, उसके केस में हमने क्या देखा, वो स्मॉल फार्मर थे, उसको पैसे की जरूरत थी, तो तेजपाल सिंह क्या करवाता था, अपने यहाँ काम हाई करवाता रेट था, ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेता था। कुछ उसी तरीके की मेंटालिटी है यहाँ पे भी। यहाँ पे जमीन दी गई है इनको, पीजेंट्स को, पीजेंट इस पे काम कर रहे हैं, ओके, और उसके बदले में यस सर। सर्विसेज देते हैं इनको। अब जैसे आर्मी में दे दिया, ओके, और फिर वर्क तो फील्ड सर में जो मतलब है काम टैक्स करने नहीं के लिए देते हो हैं ना, गया, वो सर्विसेज देते हैं। सर रोड सर के एक बिल्डिंग में बार काम करने के लिए दे दिया। तो सर फिर वो मतलब टैक्स नहीं देते, वो सर्विसेज के सर द्वारा जिससे मुझे समझ नहीं आ पूरा रहा कर कि ये जो देते हैं। प्रोड्यूस टैक्स होता भी था वो देते हैं, पीजेंट्स का था कि नोबल्स का? टैक्स भी देते हैं वो, ओके। तो सर सर फिर वो फ्री सर ऑफ कॉस्ट सर आवाज कट जा रही थी मुझे। सर एक बार सर आप एस्टेट वाला पॉइंट और समझा दो सर, जो ये क्लर्जी और नोबिलिटी वाला है। सर एक मिनट आगे बढ़ जाइएगा फिर। बस सर फ्री ऑफ कॉस्ट फिर वो काम क्यों करते हैं उनके पास? क्योंकि लैंड भी उन्हीं का ही है, टैक्स भी वो दे ही रहे हैं फिर। ओके, लैंड इनका है नहीं, पीजेंट्स का ये लैंड है नहीं, इस लैंड पे वो काम करते हैं, ये लैंड उनको प्रोवाइड किया गया है, इसमें जो भी इनकी लाइवलीहुड है इसी लैंड के जरिए चलती है। अब उसके बदले में ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। हाँ, इसके अलावा ये क्या करते हैं, टैक्सेस भी पे करते हैं, दैट्स ऑल। पर टैक्सेस में फिर अब भी जैसे वो अभी आप पढ़ोगे टेथ, तो 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब अगर 10 क्विंटल अनाज हुआ है तो 1 क्विंटल ही टैक्स दोगे, 9 क्विंटल तो आपका होगा, वो 9 क्विंटल आप खाओ पियो। समझ में आया? तो मतलब सर फिर ये वो दबाव में ही भरते ये कौन कि पूछ आप रहा ये है? हमारा लैंड। मैं पूछी सर मोक्षिका। मोक्षिका, हाँ बताओ सर क्या फिर प्रॉब्लम है? सर फिर भी वो उनके मतलब एक तरीके से उनके अंडर ही रहते थे कि एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, बट फिर भी उनके ऊपर ये दबाव रहता था कि ये लैंड हमारा नहीं है, कभी भी छीन लिया जाएगा। हाँ इसीलिए उन्होंने बिल्कुल, फ्यूज बोला है ना। यस, वो सर ये हमेशा ऐसा डर तो लगा नहीं था रहता ना था जैसे, सर ये ऐसा तो नहीं है ना जैसे मुगल के टाइम पे था कि एक ही लैंड दो लोगों को गलती से मिल गया। एक ही लैंड दोनों को गलती से नहीं मिलेगा। यहाँ सर पे जो जैसे लैंड है वो सबको क्लियरली डिमार्केटेड, ऐसा कहीं पे नहीं दिया है कि मुगल के जैसा था, ठीक है? यस एक्सक्यूज मी सर। सर ये Yes. लैंड खत्म नहीं होता था। सर ये किंग की मर्जी होती थी कि वो किसी को भी लैंड दे, या फिर जो पीजेंट थे वो रिफ्यूज कर सकते थे लैंड लेने से। आपको कोई पैसा देगा तो आप मना करोगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो? सर बट इतना लैंड आता कहाँ से वेट था? वेट, अर्नव, अर्नव पूछ रहे हो ना? यस सर, अर्नव पूछ। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है एंड यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड समवन इज गिविंग यू लैंड और मनी, व्हाट यू विल डू? सर फिलहाल तो उस टाइम लाइवलीहुड रन करने के लिए पैसा तो लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाट हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? ओके सर। तो सर ये लुई 16 के रूल में हो रहा था ना ये फ्यूडल सिस्टम? ये 9 से लेके 15 सेंचुरी। सर एक बार सर ये एस्टेट वाला पॉइंट और समझा दो सर, ये सर फर्स्ट एक सेकंड एंड चीज सर एक चीज पूछनी है लास्ट, सर ये लैंड ये लोग खरीद नहीं सकते थे? आता कहाँ से था? हाँ, क्या कह रहे हो? सर इतना लैंड आता कहाँ से था? ये कैसा क्वेश्चन है, मोक्षिका पूछ रही हो? हाँ सर, जो मतलब वो सभी को दे देते थे क्या, या सिर्फ नीडी को देते थे? लैंड आएगा कहाँ से? लैंड तो अब ये फ्रांस में ये लैंड है, सपोज ये फ्रांस की बाउंड्री है, अब इसी में लैंड जो है एलोकेट किया जाता था अलग अलग लोगों को, ओके। किंग डिसाइड करता था किसको क्या देना, नोबेल को दे देते थे, नोबेल डिसाइड करते थे किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। ऐसा थोड़ी है लैंड कहीं से खरीद के ला रहे हैं और यहाँ पे चिपका दे रहे हैं कि ये लो ये भी हो गया। और मतलब जैसे क्या फार्मिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होती थी कि जो ये लैंड ही बांटते रहते थे? लैंड दे दिया, अब उसमें आप फार्मिंग करिए,
कल्टीवेशन करिए, डेयरी रिलेटेड वर्क करिए, वट एवर यू लाइक यू कैन डू ओवर हियर. You may peasants लोग land खरीद नहीं सकते थे. से 1/10 किस लिए लिखा है? Yes. से 1/10 ऑफ लैंड है. अभी हम लोग आएंगे इस पे, ठीक है. अब जिसके दो डाउट है सर एक डाउट है सर. वेट करो. सर आपकी आवाज कट जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो पीजेंट्स जब काम करते थे वहाँ पे लैंड पे, तो वो प्रोड्यूस जो होता था वो नोबल्स का होता था कि पीजेंट्स का? पीजेंट्स का होता था. सर जो पीजेंट्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे वो लोग लैंड को खरीद नहीं सकते थे. एक होलिस्टिक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो है कि पीजेंट्स को वो दिया जाता था. अब जिसके पास ऑलरेडी इकोनॉमिक वेल्थ है, ठीक है, वो क्यों जाएंगे लेने, वो क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे? यस सर. ओके. सर यहाँ पे सर जो सेकंड स्टेट है नोबिलिटी, सर यहाँ पे जैसे वो सर शॉपकीपर जैसे काम करता है, सब बिचौलिए का काम सर, मतलब नहीं, नोबिलिटी ऐसा नहीं है, सब बिचौले नहीं है. ओके. तो ये बिचौलिए आप कह सकते हो, सर उन्हें भी टैक्स भरना पड़ता है. किंग के लिए एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं, ठीक है. किंग के लिए आप कह सकते हो कि एक तरह से बिचौलिए का क्या करते हैं, काम करते हैं. सर एक बार सर ये एस्टेट वो लैंड नहीं लेते थे, लेकिन हिंदी होते थे वो लैंड. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है. अब इसमें फ्यूडल ड्यूज वगैरह मैंने पढ़ा दिया, उस पर शॉर्ट नोट्स आप लोग बना देना, ठीक है. अब यहाँ पे देखोगे टैक्सेस जो है लेवाई किए जाते थे. क्या लेवाई किए जाते थे? टैक्सेस. तो 3 तरह के आप टैक्सेस पढ़ेंगे. टेथ, टेल एंड टेल. पहले 2 तरह के मेन है. हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, नाम नहीं दिया उसके बारे में. इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे. टेथ समझ लेते हैं, ये सब एग्जाम में आता है. एनटीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. ओके. टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. अब जब तक मैं ना कहूं कोई नहीं बोलेगा, ठीक है. पहले सुन लो पूरा. टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. ओके. सेकंड, टेल, सॉरी टैक्स टू बी पेड, ये गलत हो गया यहाँ पे. यस सर, ये तो चर्च को देते हैं ना 1/10. Wait, this is incorrect. Don't write it. This one is tel actually. I had written this in teth. Okay. Teth में आपका है tax levied by the church, in which या ऐसे लिखो comprising 1/10 of the agricultural. सर आपने टैक्स के बाद क्या लिखा है? प्रोड्यूस. टैक्स लेवाइड, लगाया गया, बाय द चर्च, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था. टेल क्या है? टैक्स टू बी पेड directly to the state, particularly all the members of third E-state used to pay this tax. फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे थे, जिसमें से कुछ हैं जैसे सॉल्ट पे, सॉल्ट और टोबैको, इस पे भी टैक्स लगाया जाता था. तो इस तरीके से टैक्सेस लिए जाते थे. फ्यूडल प्रिविलेजेस में अगर आप देखो तो क्या होता था, फ्यूडल प्रिविलेजेस थे इसमें, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ईच स्टेट वर exempted from paying taxes. ओके. ये फ्यूडल प्रिविलेजेस में दिया गया है. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिविलेजेस में टैक्स ही है क्या? यस सर फ्यूडल प्रिविलेजेस में टैक्सेस ही हैं.
क्या नहीं है फ्यूडल प्रिविलेजेस में? टैक्स ही है क्या फ्यूडल प्रिविलेजेस? प्रिविलेजेस में मतलब एक विशेषाधिकार मिला है जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकंड ईच स्टेट को काम नहीं करना होगा, सॉरी वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ फ्यूडल ड्यूज तो आपने पढ़ा ही है, फ्यूडल ड्यूज भी है कि वो थर्ड ईच स्टेट वालों को अपने यहाँ काम करा सकते हैं। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट से लिए जाते थे कि सारे स्टेट मेंबर्स से? कौन से? सर ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है सॉल्ट और टोबैको पे, ये सिर्फ थर्ड स्टेट से लिए जाते थे या फिर दूसरे स्टेट से भी लिए जाते थे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड ईच स्टेट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस है, तो बचा कौन? थर्ड ही बचा। तो चर्च वाला जो टैक्स है वो भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को नहीं देना होता था? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, ईच स्टेट को टैक्सेस नहीं देना होता था, यस। एवरी टाइप कोई सा भी टैक्स हो सब थर्ड स्टेट को ही देना है? हाँ थर्ड स्टेट। अब नेक्स्ट सर चलेगा समझा दो सर, फर्स्ट टैक्स समझा दो। फ्यूडल प्रिविलेजेस रहेगी। फर्स्ट है टैक्स लेवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 कौन रखेगा? चर्च रखेगा। टेल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट को जो है डायरेक्टली पे करना है, और जितने भी थर्ड मेंबर से स्टेट के वो पे करते थे। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जैसे सॉल्ट पे और टोबैको पे। ओके सर जैसे टेथ जो था वो 1/10 ऑफ प्रोड्यूस थी, जो टेल था वो क्या था? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, जो कि थर्ड मेंबर ऑफ ईच स्टेट देते थे। सर मतलब वो किस फॉर्म में था? वो मनी के फॉर्म में था या फिर जो हमें मिलेगी प्रोड्यूस मिलेगी? प्रोड्यूस के भी फॉर्म में है, मनी के भी फॉर्म में। प्रोड्यूस है तो उसको आप सेल करके मनी के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, मोर और लेस मनी के फॉर्म में रहता है। सर ये जब सारी चीजें हम टैक्सेस एंड फ्यूडल ड्यूज एंड फ्यूडल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये पूरा फ्रांस का जो पहले से ही चला रहा है वो पढ़ रहे हैं या सिर्फ लुईस 16 के रूल का पढ़ रहे हैं? फ्रांस का पढ़ रहे हैं, जो पहले से ही चला आ रहा है। हाँ ओके सर। अब यहाँ पे स्ट्रगल टू सर्वाइव, वेट करो, अब स्ट्रगल टू सर्वाइव, किसी का डाउट हो उसको लिख लो, एंड ऑफ द क्लास हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसमें हम देखते हैं कि हुआ क्या कि जो टाइम पीरियड था बिटवीन 1715 टू 1789, ओके, इस पीरियड में जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज हो गई ड्रामेटिकली फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। वेरी गुड, बोलिए मत पर सुनिए, 23 मिलियन टू 28 मिलियन। अब हुआ क्या, जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो लैंड इज फिक्स्ड, ये भी आपने पढ़ाई है, लैंड क्या था? फिक्स था। अब लैंड जब फिक्स्ड है तो इसके जो कल्टीवेशन था, जो क्रॉप था, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, और पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो इसके केस में क्या होगा कि इसके केस में क्या होगा, डिमांड बढ़ता चला जाएगा। डिमांड क्या हो गया? बढ़ता चला गया। क्या हो गई? कम हो गई, उस डिमांड के हिसाब से मीट नहीं कर पाए। तो इस केसेस में जब डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कौन करता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसको अफोर्ड कौन करता है? रिच एंड मिडिल क्लास वाले जो हैं वो अफोर्ड करते हैं, पुअर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अब प्राइसेस जब बढ़ गए तो प्राइसेस में ब्रेड के प्राइसेस सपोज बढ़ गए, तो ब्रेड के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो ब्रेड क्या है? स्टेपल फूड है। क्या है? स्टेपल फूड, जो सभी लोगों को चाहिए। अब इसके प्राइसेस जब बढ़ गए तो लोगों को क्या करना पड़ा? प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या है? सबसिस्टेंस क्राइसिस। द बेसिक मीन ऑफ, ऐसे लिख लो, व्हेन द बेसिक मीन्स ऑफ livelihood is in danger. When the basic are in danger. livelihood are in danger. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ा, सप्लाई उस तरीके से नहीं बढ़ी, प्राइसेस उसके वजह से क्या हो गई? हाई हो गई। और जब प्राइसेस हाई हो गई तो ब्रेड के सपोज अगर है उसी में आएगा, क्रॉप में ही, क्रॉप की वजह से ही हो रहा है, तो ब्रेड के जो डिमांड थे वो बढ़ गए। ओके, ब्रेड के प्राइसेस एक्चुअली बढ़ गए और
ब्रेड क्या था, एक स्टेबल फूड था। तो एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गई, जहां पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हो गए, डेंजर। अब इस प्राइसेस के बढ़ने में क्रॉप कल्टीवेशन से अलावा और भी क्या था कि बीच बीच में ड्रॉट भी आ जाते थे, ड्रॉट एंड हेल। तो इससे क्रॉप क्या हो जाता था, डैमेज भी हो जाता था। तो ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके, और कल्टीवेशन कम हो रहा है, और कल्टीवेशन कम हो रहा है, साथ ही साथ ड्रॉट भी आ जाते हैं, बाढ़ सूखा और जो है कि ओले वगैरह गिर के सारा क्या कर रहे हैं, फसल खराब कर दे रहे हैं। तो शॉर्टेज हो जा रही है किसकी, क्रॉप की, और डिमांड एज इट इज बढ़ रहा है। तो दिट्स लेड टू व्हाट, प्रॉब्लम नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखो कभी भी रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ रेवोल्यूशन विल बी, ठीक है, याद रखना, दिमाग में इसको फीड कर लो, यू विल फाइंड द वन ऑफ द कॉज इज फूड स्कार्सिटी। ओके, क्या प्रॉब्लम होगी, फूड स्कार्सिटी। जब लोग भूखे रहेंगे तो लोगों को क्या होगी, फिर प्रॉब्लम होगी। लोग सोचेंगे जो है कि स्टार्वेशन से मर रहे हैं हम, ठीक है, इससे बढ़िया क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवॉल्ट कर लेते हैं, रेवोल्यूशन कर लेते हैं, उसमें तो चांस है कि हमें हमारे जो है रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल हो जाए। ऐसे तो हमारे कोई भी चांसेस नहीं है, हमें तो क्या हो जाना होगा, फिर पेरिश हो जाना होगा, ठीक है, या तो फिर हम मर जाएंगे। ऐसा कुछ मरना है तो क्यों ना लड़ के मरा जाए, ओके, भूखमरी से क्यों मरे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। स्टेपल का मीनिंग इट्स मीन उन्हें टैक्सेस भी ज्यादा थर्ड स्टेट वालों को ही देना पड़ता था, प्लस उन्हें फूड की डिमांड भी नहीं उनकी क्लियर हो पाती थी। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? सर स्टेपल का मतलब समझ लो मेन फूड। सर हाँ, तो जैसे राइस है इंडिया में, व्हीट, ब्रेड के अमाउंट मतलब ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है या ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ने की वजह से ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सर जो इसेंशियल फूड होता है हमको चाहिए होता है जीने के लिए, सब वो, यस सर। सर उसकी जो वो थी वैल्यू भी बढ़ा दी, और जो उसकी डिमांड थी क्योंकि राइज हो गई तो उसकी वैल्यू भी राइज हो गई। क्या कह रहे हो सर जो ये था जो हमारे खाने के लिए हमें ज़रूरी होता है जीने के लिए, सर एसेंशियल फूड, सर वो जो था उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी क्योंकि पॉपुलेशन सडनली राइज हो गई थी। सडनली नहीं हुआ था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1715 टू 1789 पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। सर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई थी, इसके कारण जो वो थी प्राइस भी बढ़ा दिया गया। लोग मुंद्रा, कृष्णा बोल रहे हो? यस सर। ठीक है कृष्णा, आपके जो है कि समझ ठीक है, बट थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में नहीं बात की गई है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे बात की गई है पॉपुलेशन ओवरऑल। तो सिर्फ टर्म पॉपुलेशन ही यूज करोगे, ओके। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। Is this the last topic which we are going to study as it's 8:50? हाँ, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक, ठीक है। एनविसेजेस का मतलब कल्पना करना। एनविसेजेस का क्या मतलब? कल्पना करना। मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। कौन से प्रिविलेजेस हैं? जो प्रिविलेजेस मिले हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईस्ट स्टेट को। तो अगर आप देखो व्हेन देयर वाज अ फाइट, तो इस फाइट में यू विल फाइंड कि पहले पास्ट में कौन लड़ते थे? पीजेंट्स एंड वर्कर्स। कौन करते थे? पीजेंट्स एंड वर्कर्स। यही रेवोल्यूशन करते थे, पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट में। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी के लिए पास्ट में अगर आप देखो तो क्या होता था? यही पीजेंट्स एंड वर्कर्स फाइट करते थे। ये जीत नहीं पाते थे। ये क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? इनके पास जो है कि प्रॉपर मीन्स एंड प्रोग्राम्स नहीं है। प्रॉपर मीन एंड प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए ये नहीं जीत पाते थे। अब हुआ क्या कि मिडिल क्लास के ऊपर फिर बाद में क्या आ गई? जिम्मेदारी आ गई। अब मिडिल क्लास में आप देखोगे कि बिजनेसमैन भी हैं, ओके, बिजनेसमैन भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, फिर उसके बाद लॉयर्स हैं,
एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक्सेट्रा। ये मिडिल क्लास हमेशा याद रखना आप, ओके। तो इनके ऊपर अब क्या जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है। बिजनेस मनी, मैन्युफैक्चरर्स के पास क्या है, मनी। व्हाट दे हैव मनी, ओके। और ये मनी इन्होंने बनाया कैसे है, थ्रू एक्सपैंडिंग, लिख लो ये सब, लिखते चलो, थ्रू एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, दूसरे देशों से ट्रेड करके, व्यापार करके इन्होंने पैसा बनाया है। मैन्युफैक्चरर ने कैसे बनाया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सामान कुछ बनाए, जैसे कि कौन से सामान, वुलन एंड सिल्क के टेक्सटाइल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो ये बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर पैसे कैसे बनाते हैं, तो आप लिखोगे बिजनेसमैन थ्रू एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, और मैन्युफैक्चरर का ये तो फर्स्ट हो गया। मैन्युफैक्चरर कैसे बना रहे हैं, बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, ओके। अब ये लोग पैसे हैं, अब ऑब्वियसली जिनके पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लोगों को बेटर एजुकेशन देते हैं। क्या करते हैं, बेटर एजुकेशन देते हैं। तो इनके पास बेटर एजुकेशन होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली दिस टू गाइस, ठीक है, लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स पर्टिकुलरली। तो बेटर एजुकेशन होते हैं, तो बेटर एजुकेशन है, दे आर नाइदर रिच नॉर पुअर, सो व्हाट दे विल सीक अ चेंज इन सोसाइटी, ओके। व्हाट दे विल सीक अ चेंज इन सोसाइटी। सो अब सोसाइटी में क्या है, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यही सोसाइटी में है। ये इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल क्लास क्या करेंगे, इस प्रिविलेजेस बाय बर्थ को कहेंगे कि हटाओ, दिस इज नॉट करेक्ट, क्या लाओ, देयर शुड बी प्रिविलेजेस बाय मेरिट। जो काम करने में जो जितना सक्षम है उसको उसी हिसाब से क्या मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ना कि बाय बर्थ आप प्रिविलेज देंगे। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है उसको हटा दो, क्या ले आओ, प्रिविलेजेस बाय मेरिट, ओके। तो अब इसमें देखोगे कुछ प्रोमिनेंट फिलोसफर्स आएंगे। शैल आई रब दिस? सर 1 मिनट, Sir, please wait. Sir, 1 minute. राइट Please इट wait. डाउन। सर ये मेनली लॉयर्स और जो पोएट्स वगैरह Sir, थे now वो you लोग थे can क्या? hear. लॉयर्स, Yes, sir, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा। सर जो बुक में एक बार पोएट वगैरह की लाइन पे लिखी थी, पोएट फिलोसोफर्स, वो नहीं होगा इसमें? अभी आ रहा है, पहले लिखो इसको। हैव यू डन दिस? यस सर। सभी ने Yes, कर No, दिया? sir. Yes, Very sir. fast. सर आपने सर जो ये मीन्स एंड प्रोग्राम वाला सर पॉइंट लिखा है सर, ये वाला नहीं आया सर समझ में। सर जो पीजेंट एंड वर्कर के नीचे है। ऐसा है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स भी चेंजेस लाने चाहते थे सोसाइटी में, पर्टिकुलरली जो ये टैक्सेस रेज होते हैं, ओके। इस टैक्सेस के वो क्या थे, अगेंस्ट थे, और जो फूड की स्कार्सिटी थी उसके अगेंस्ट होते थे, बट वो कभी उनको सक्सेस नहीं मिलता था, ठीक है। उनके पास प्रॉपर मीन्स एंड प्रोग्राम नहीं थे, तरीका नहीं था कि कैसे अपनी बातों को रखवाई जाए इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब मिडिल क्लास क्या करते हैं, एज दे आर ग्रोइंग अप, ठीक है, दे आर नाउ इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन चेंज। इसीलिए वो कल्पना करते हैं कि ऐसी सोसाइटी की जहां पे प्रिविलेजेस ना हो। कौन सी प्रिविलेजेस, जो बाय बर्थ दी जा रही हैं लोगों को, अब कैसी होनी चाहिए, बाय मेरिट। नाउ आई एम रबिंग दिस, इफ किसी का नहीं हुआ तो आप वीडियो देख के कर लेना। अब होता क्या है कि आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड, कि इसमें कुछ प्रोमिनेंट फिलोसफर्स आते हैं। यू विल फाइंड प्रोमिनेंट फिलोसफर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एज वेल एज सीबीएसई, माइंड इट। प्रोमिनेंट फिलोसफर्स, प्रोमिनेंट फिलोसफर्स में आप देखोगे जॉन लॉक के बारे ये में। जो मिडिल क्लास है ये बेसिकली ये भी थर्ड स्टेट में ही आते हैं ना? हाँ, थर्ड स्टेट में। आपने पहला जो हायरार्की पढ़ा था उसमें बिजनेसमैन ही आए थे, लेकिन जो पीजेंट होते हैं वो थोड़े से इनसे भी नीचे वाली कैटेगरी के होते हैं। हाँ, सेकंड वाले में आएंगे। जॉन लॉक,
ठीक है, जॉन लॉक का क्या मानना था? इन्होंने पहले जो बुक लिखी वो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 treatises of the government, of government, लिख लो इसको, 2 treatises of government, मल्टीपल टाइम इन NTSC। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेफ्यूट किया, डिनाई किया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, ओके, ऑफ द मोनार्क। जो मोनार्क की दैवी शक्ति है और जो एब्सोल्यूट राइट है उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है, उसके अगेंस्ट इन्होंने किताब लिखी। अब इन्हीं के जैसे एक और हैं जी। सर ये रिफ्यूट डॉक्ट्रिन ये वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दीजिए। सर आपने डॉक्ट्रिन के पहले क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रिन, रिफ्यूट मतलब खंडन करना, ठीक है, रिफ्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मोनार्क क्या कहता है कि मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, एक्सक्लूसिव पावर है, राइट यहाँ पे कैसा होगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये क्या करता है जॉन लॉक? वो उसके अगेंस्ट होता है, वो उसके खंडन करता है कि आपके पास जो ये सारे पावर्स हैं ये नहीं होने चाहिए। और ठीक इसी के बेसिस पे जीन जैकस रूसो ने भी अपना एक किताब लिखा है इसी के बेस्ड पे, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। उनकी किताब का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या लिखा? इन्होंने प्रपोज किया, प्रपोजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक लिखी ना? यस, ऑन, उसका नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आज के डेट में जो डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं इन्हीं फिलोसफर्स की क्या है? देन है। इन्हीं फिलोसफर्स ने अपने अपने आइडियाज रखे हैं, ओके, जिनकी वजह से आज एक हम डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये आइडिया यहीं से आना शुरू हुआ है। अब देखो ये क्या प्रपोज कर रहे हैं? प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस इज व्हाट यू स्टडीड। व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाई डेमोक्रेसी? पढ़ा है ना? Final decision should be taken by those. Final decision should be taken by those who are elected. Free and fair electoral competition. Okay, one person, one vote, one value. यही सब यहीं से इवॉल्व हुए हैं। You will come across when you will proceed further. ठीक है, अभी जब आगे पढ़ते जाओ सब अपने आप समझ में आता जाएगा। अब यहाँ और प्रोमिनेंट फिलोसफर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉन्टेस्क्यू, क्या नाम है इनका? मॉन्टेस्क्यू। अभी मॉन्टेस्क्यू के केस में क्या होता है? इन्होंने पहले जो बुक लिखी है वो लिखो, द स्पिरिट। सर आपकी स्क्रीन रुक गई कुछ, वही मॉन्ट पे रुक गया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ओके। मॉन्टेस्क्यू एक नाम है फिलोसफर का जिन्होंने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ने लिख लिया है आई थिंक। सर एक बार जॉन लॉक की बात समझा दो। यस सर। जॉन लॉक ने किताब लिखी 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि उन्होंने जो एब्सोल्यूट पावर है मोनार्क का, ठीक है, और जो डिवाइन पावर है मोनार्क का, उसको उन्होंने खंडित किया है, उसके अगेंस्ट उसको क्रिटिसाइज किया है कि इनके पास नहीं होना चाहिए। जीन जैकस रूसो ने कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और जब मॉन्टेस्क्यू की बात आई तो मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताब में क्या लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताब में लिखा कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? रिफ्यूट का मीनिंग है रिफ्यूट, खंडन करना, डिनाइड, डिनाइड कह लो, यस। प्रपोज्ड, ये कौन है? मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने क्या किया? प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर। इन्होंने क्या किया? प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिख लो, याद हो जाएगा अच्छे से। बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द
एग्जीक्यूटिव सर ये एंड द बीबीसी का लिखा है आपने बिटवीन। जुडिशियरी। यस सर ये बिटवीन लिखा है। डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। सर मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट लॉ। ऑफ द सर आपने नेम क्या बोला? द स्पिरिट देखो लिखा हुआ है। ऑफ द लॉज। अब ये भी देखो मॉन्टेस्क्यू कहीं वही तो पॉइंट नहीं था, डेमोक्रेसी में पढ़ा है हमने, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ इन डेमोक्रेसी, है ना। तो ये किसने अडॉप्ट किया? 13 अमेरिकन कॉलोनीज adopted these ideas in their सर आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज सर आवाज भी कट स्क्रीन भी नहीं आ रही। स्क्रीन फ्रीज हो गई। ने क्या किया? 13 अमेरिकन कॉलोनीज adopted these ideas in their constitution। अब इस 13 अमेरिकन कॉलोनीज में स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, दोबारा समझा दीजिए। ओके, मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच जो पावर है वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ओके, और ये जो आइडियाज दे रहे हैं वही हम आज देखें किसमें? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में यू विल फाइंड दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसी आइडिया को किसने जो है इम्प्लीमेंट किया? 13 अमेरिकन कॉलोनीज, जो कि रिसेंटली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। किससे? ब्रिटेन से। अब ये जो आइडिया था, नया आइडिया था, एक्चुअली जो टाइम है वो किसका है? मोनार्क का। मोनार्क ने किया एब्सोल्यूट राइट अपने पास रखा है। जब नए आइडिया आते हैं पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के सामने, तो वो क्या करते हैं? उसको डिस्कस करते हैं। और ये भैया क्या थे? डिस्कस थे, वॉज डिस्कस्ड। कहाँ डिस्कस्ड हुए? सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। यस सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। स्क्रीन भी फ्रीज हो गई। हमसे पता नहीं मोनार्क की लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? नो सर स्क्रीन मोनार्क बैठा गया था। इसमें स्क्रीन फ्रीज हो रही अब दिख रहा है? सर अब दिख रहा है बट फिर फ्रीज। यस सर। वॉइस भी अटक चलो ठीक है। कॉफी हाउसेस, ओके, ऐसे जगहों पर क्या होता है? इस आइडिया को थॉरली डिस्कस किया जाता है। अब जब डिस्कस होता है, कोई नया आइडिया आता है, जब लोग डिस्कस करते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने सोचते हैं। और इसी आइडिया ने हेल्प किया उनको फाइट अगेंस्ट मोनार्क। क्या सर एक बार समझा दीजिए, सलून एंड के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। कॉफी हाउसेस। अब देखो, कभी भी लोग अगर इकट्ठे होकर बात करते हैं तो वो जो कॉमन एक जगह होती है वो कौन सी होती है? सलून होंगे, कॉफी हाउसेस होंगे, ओके, या फिर इकट्ठे कहीं पे जो बैठकर उनका अपना आइडिया होगा। आइडियाज है, मोनार्क अलग है एंड आइडियाज अलग है। क्या मोनार्क आइडियाज है, आइडियाज अलग है। ये तो मैंने इसे समझाने के लिए लिख दिया था मोनार्क। यस, मोनार्क का जो एब्सोल्यूट पावर है, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था, उसके कंटेक्स्ट में मैंने मोनार्क लिख दिया था। तो इसके क्या था? अगेंस्ट थे, ठीक है। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड और जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज के जिन्होंने अडेप्ट किया वो सब डिस्कस करते थे। 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने क्या किया? यही सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं जो इसमें। आज के डेट में तुम डेमोक्रेसी समझ रहे हो ना, पहले नहीं था। तो पहले जब नहीं था तो ऐसे ही इवॉल्व हुआ है थ्रू जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड जीन जैकस रूसो। सर क्यों नहीं इसकी शुरुआत की जो ये था एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर। सर आइडियाज क्या? सर आइडियाज क्या क्या थे? यस सर, एंड सर ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज डिस्कस करती थी। आइडियाज कहाँ लिखा है यहाँ पे? सर लिखा तो है आइडियाज में। फिलोसोफर्स आइडियाज डिस्कस करते हैं। वो पीपल करते थे लोकल लेवल पे। इस तरह के आइडियाज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तुम लोगों को मतलब बेसिक चीजें भी नहीं समझ में आ रही हैं। ये आइडिया है, पहले क्या था? लेजिस्लेटिव,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पहले एक के हाथ में होती थी। वो कौन था? मोनार्क। इन्होंने आइडिया दिया कि नहीं, अलग अलग करो, लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। तो ये क्या है? ये आइडिया ही तो है। जो क्या करती हैं 13 अमेरिकन कॉलोनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त क्या करते हैं? इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब वो आइडियाज में जैकस रूसो भी आइडिया है, जॉन लॉक का भी आइडिया है। ये आइडिया ये लोग क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं 13 अमेरिकन कॉलोनी। सर जैसे हमारे जो आजादी हिस्ट्री में सर हमने पिछली क्लासेस में रविन्द्रनाथ टैगोर। कृष्णा रुको तुम अभी, बाकी लोगों को क्लियर हो गया? पहला था ना जिसने ये इंट्रोड्यूस कराया था। हाँ, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैकस रूसो, ओके, और जॉन लॉक। सर ये लोगों के आइडियाज हैं। ये लोग डिस्कस कौन करते थे? जो फिलोसोफर सर ये 13 अमेरिकन कॉलोनी के ये तीनों अपनी आइडियाज किताबें लिखते थे। हेलो, तो डिस्कस कर रहे, सुनो पहले। ये किताबें लिखते थे, लोग उसको पढ़ते थे, पढ़ के उसको डिस्कस करते थे। अरे वाह, ये तो नया आइडिया दिया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या कर दो, सेपरेट कर दो। कुछ ने पढ़ा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा उसमें कि अरे इसमें तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लोग पढ़ते थे उसकी पढ़ी हुई बात को वो क्या करते थे? लोगों के सामने रखते थे और लोग उसको फिर उस पर चर्चा करते थे। दिस इज व्हाट। तो सर 13 अमेरिकन कॉलोनीज में तीनों आइडिया अडेप्ट कर लिए? हाँ, ये सिर्फ थर्ड आइडिया अडेप्ट करा, लेजिस्लेटिव वाला। चलो ठीक। क्या सर आपकी सर जो जैसे राइटर्स, सर जैसे we will continue with this, and if you will have any kind of doubt in this, you can ask me in next class. Okay? और क्या ये सर जो ये राइटर्स थे सर, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं सर, वो जो हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं सर, उन्होंने भी कुछ आइडियाज दिए थे इससे रिलेटेड, और ये थोड़ी बेटर करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर इंटेलेक्ट थे, वो आइडियाज तो यहीं से वेस्टर्न आइडियाज ही थे, इसी से रिलेटेड। और रविन्द्रनाथ टैगोर अपने यहाँ के जो डिफरेंट कल्चरल और ट्रेडिशंस हैं उस पे ज्यादा फोकस करते थे। आइडियाज तो यहीं से इवॉल्व होके आई हैं ना, जो आइडियाज आज आप पढ़ते हो, तो यही जो है क्या है इनके। सर मतलब आइडियाज लेखकों से मिले हैं ज्यादातर सर, ज्यादातर राइटर्स ने दिए हैं। राइटर्स ने दिए मतलब फिलोसोफर्स थे, इनकी जो टाइमिंग्स थी राइटर्स ने दिए, यस, ऑथर्स ने राइटर्स दिए। ओके, ठीक है सर। ये जो फिलोसोफर्स हैं इनकी टाइमिंग्स क्या क्या थी? मतलब ये लोग मतलब किस साल में आए थे? किस साल में आए थे? अब ये देख लेना आप लोग, इन लोगों के डिफरेंट टाइम पीरियड है, ठीक है? फाइंड इट आउट कब टाइम आए थे, ठीक है? बट ये टाइम ये 1789 से पहले ही आए थे। सर आप मानस थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज आ नहीं रही अच्छे से। सर ये तीनों फिलोसोफर्स कभी ऐसा भी होगा कि आपस में मिलकर उन्होंने बातचीत करी होगी कि हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा कोई टाइम पीरियड था इनका कॉमन टाइम पीरियड? ये कॉमन टाइम पीरियड फाइंड इट आउट ना मानस, आई जस्ट टोल्ड यू दिस। यस सर। ओके, फाइंड इट आउट, गूगल इट आउट। हां सर अब हमें इससे क्या लेना है कि वो लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं। लास्ट वाले का करा, और मोस्टली यू विल फाइंड कि उनका जो है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार चेक करो उसको, फाइंड, यू विल फाइंड इट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।